আচ্ছা, আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ভাই বলো। হ্যাঁ, বলছি ও আস্তে আস্তে আমি তোমাদের কিছুটা ডেমো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দাও, রেকর্ডিং অন আছে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে তোমাদের একটা সফটওয়্যার পোর্টাল, যেটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। এখানে দুটো আইডি পাসওয়ার্ড আছে। তো এবার লগ ইন করলে সফটওয়্যারটা মেন ঢুকবো। এটা হচ্ছে মাইক্রো হ্যাঁ, ফাইন্যান্সের সফটওয়্যার, যেখান থেকে লোন দেওয়া হয়। তোমার তারপরে গোল্ড লোন, হোম লোন, ছোট ছোট লোন যেসব হয়, সব হ্যাঁ, ধরনের লোন এরা দেয়, মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি। ঠিক আছে। এরা খালি লোনের জন্যই মেনলি হয়। হুম, তো এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ড্যাশবোর্ড। ঠিক আছে, আরো কটা আমি হুম, দেখাবো এক্সাম্পল। এখানে ওর এই যে কতগুলো মোবাইল ইউজার আছে, কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে ওর, কতগুলো অ্যাক্টিভ ইউজার আছে। এই জন্য সবে আমাদের নতুন কাস্টমার এর 16টা এরকম হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইএমআই কতগুলো রিসিভ হয়েছে, পুরো ডিটেলস এই ড্যাশবোর্ডে থাকবে। ড্যাশবোর্ড যেটা জানো তুমি হ্যাঁ, হয়, এই যে হেড অফিস কোথায়, কতগুলো ব্যাংকের সাথে কানেক্ট আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স, এই যে এগুলো সব দেওয়া থাকবে। এটা হচ্ছে হুম, ড্যাশবোর্ড। ঠিক আছে, হুম। এইবার মাস্টার কন্ট্রোল কি আছে। মাস্টার কন্ট্রোলে তুমি প্রথমে পেয়ে যাবে হচ্ছে এই দেখো, কোম্পানি প্রোফাইল। ঠিক আছে, কোম্পানির প্রোফাইলটা। কোম্পানির প্রোফাইলে কি কি আছে, কোম্পানির নাম। এখানে তুমি কিছু এডিট করতে পারবে না, এডিট করো না, কারণ এটা হুম, অলরেডি একটা অন্য ক্লায়েন্টের ঠিক লাইভ আছে। হয়ে গেছে। ঠিক আছে, হুম, হুম, তো এইটা হচ্ছে এনবিএফসি, এটা হচ্ছে ওদের ফাউন্ডেশনের নাম। এটা হচ্ছে শর্ট হুম। ফর্ম। এগুলো এগুলো ওদের কোড ফোড ইন ডিটেলস বলতে পারো, ডিটেলস গুলো দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট জিজ্ঞেস করে এটা কি বলবে, সমস্ত ডিটেলস দেওয়া আছে, তাদের অ্যাড্রেস, হ্যাঁ, ইমেল আইডি। হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ মাস্টার। মাস্টারে কি, তুমি এখান দিয়ে এই যে নাম এন্ট্রি করে ব্রাঞ্চ কোড দিয়ে, যেরকম ধরো আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক বা স্টেট ব্যাংকের হ্যাঁ, বাগুইটিতে একটা ব্রাঞ্চ আছে, জ্যাংড়াতে একটা ব্রাঞ্চ আছে। তো হ্যাঁ। তুমি ব্রাঞ্চে হেড অফিস হিসাবে তুমি এখান থেকে ব্রাঞ্চ একটা অ্যাড করতে পারবে। যে ওপেনিং কবে আছে, ওপেনিং ব্যালেন্স কত, অ্যাড্রেস কি, ফোন নাম্বার কি দিয়ে এগুলো আমাকে ফিল করতে হবে? হ্যাঁ, মানে ক্লায়েন্ট ফিল করবে, কারণ সে তো একটা ব্রাঞ্চ খুলবে না, সে তো অনেকগুলো খুলবে, তার জন্য এটা অলরেডি দেওয়া রয়েছে। তো ক্লায়েন্ট এটা কিভাবে, ক্লায়েন্ট আমার সাথে কিভাবে মানে আমি ডেমো ক্লায়েন্টের কিভাবে বাস দেবো? তোমাকে এই ডেমোটা দেখাতে হবে, আর কিচ্ছু না। কিভাবে দেবো ডেমোটা? মানে এইখানে যে ফিল আপস গুলো করবে, ওটা ক্লায়েন্ট কিভাবে ফিল আপ করবে আমি যদি মানে স্ক্রিন শেয়ার করি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করলে ও ফিল আপ করবে কিভাবে ও ক্লায়েন্ট? ও ফিল আপ কিছু করবে না, ওকে আমরা বানিয়ে পরবর্তীকালে দেবো সফটওয়্যারটা। এটা আচ্ছা, হচ্ছে জাস্ট আমরা ডেমো দেবো যে সফটওয়্যারটা কিরকম, আমাদের কাছে রেডি আছে, আচ্ছা, ওই আচ্ছা। হিসাবে আমরা ওনাকে দেবো। সেকশন গুলো এক্সপ্লোর করছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আচ্ছা, আছে, ঠিক আছে। এরপর দাঁড়াও। তুফান, হ্যালো, হ্যালো, তুফান, আমার আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ, আওয়াজ আসছে। দাঁড়াও, 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 আচ্ছা, আমি কিছুটা ওদের এই এনকেবিটা আমার খোলা আছে। এনকেবিটা আমি ওদের দাঁড়াও, মাস্টার দাঁড়াও, ভিডিওতে দাঁড়াও, দাঁড়াও, বোঝাচ্ছিলাম। দাঁড়াও, আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। এখানে ওদের আমি তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করি। তুফান হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা বানিয়েছে, ঠিক আছে, ওর টেক টিম। আচ্ছা। আর এদিকে তন্ময় আছে, ও টেক টিমেরই, বাট ও তোমাদের সাথে ডেমো আপাতত দেখছে। আর আচ্ছা। এদিকে ভাই তোমার নামটা একটু ইন্ট্রোডিউস করে দাও। হাই, আমি অর্ক। আচ্ছা, আর তোমার বন্ধুর নাম কি আছে? অন্য। साकेत है मेरा नाम साकेत जायसवाल। আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমাদের তাহলে এইটা এরপর থেকে, আচ্ছা, তুফান তোমার কি খোলা আছে ল্যাপটপ? খোলা আছে। একটা মিনিট দাঁড়াও, একটা মিনিট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সাউন্ডটা খুব আস্তে আসছে, ওই জন্য একটা মিনিট ঠিক আছে, দাঁড়াও। ইস্যু নেই। আমি ততক্ষণ এটা ওদেরকে দেখাচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ওপেনিং। আচ্ছা, নিচে এটা দেখছো, যতগুলো ব্রাঞ্চ এখানে যে হুম, পুট করবে, এখানে লিস্টগুলো আসতে থাকবে। ঠিক আছে, এই যে, হুম। এর যেরকম হেড অফিস খুলেছে 6124, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওর এই যে প্রিফিক্স নাম্বার কি দিল, ওপেনিং ব্যালেন্স দিল, হ্যাঁ, হেড অফিসের নতুন কোম্পানি ওর কি টাকা দিয়ে খুলবে। তো হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ অফিসের ইনফরমেশন কিভাবে পুট করবে। এইবার দেখো, এমপ্লয়ি র্যাঙ্ক মাস্টার বলে একটা আছে। হ্যাঁ। ওর অফিসে কে কে আছে, র্যাঙ্ক এখানে পুট করতে পারবে, ডেজিগনেশন পুট করতে পারবে, কি কি, মানে এটা হচ্ছে কোনো পার্সন না, কিন্তু ধরো ব্যাংকে ম্যানেজার হয়, আচ্ছা, আমার কথা হচ্ছে যে আমি যখন দেখাবো টিউটোরিয়ালটা মানে এই ডেমোটা, তো হুম, ওটা কিভাবে দেখাবো? আমি ঠিক যেভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি সেম ভাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওরা আবার অনেকে হয়তো আগের থেকেই জানবে। আর অনেকে আচ্ছা, কাস্টমার বেসটা কি আছে মানে আমাদের ওয়েস্ট দেখো, বেঙ্গলের? এটা তুমি যদি মানে প্রপার কোনো ক্লায়েন্টকে ডেমো দেখাতে বসো না, এটা হিউজ টাইম লাগবে কিন্তু। এটার মধ্যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রচুর সে তো জিনিসপত্র করা আছে, ঠিক আছে। সেটা তো বুঝতে তো পারছি। বাট আমি বলবো তোমরা ব্রিফলি জেনে রাখো
ঠিক আছে, তার কারণ তুমি ক্লায়েন্টকে ধরো একটা ভিউ দেখাতে দেখাতে এগোচ্ছ, কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি ফট করে কোনো ক্রস কোশ্চেন করে না, তো হ্যাঁ। আমি ওই জন্য বলছি যে তোমরা ব্রিফলি জেনে রাখো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা কারণ ক্লায়েন্ট অনেকে আছে না, তাদের অলরেডি কোম্পানি আছে, তো তারা জানবে তোমার থেকেও বেশি। আচ্ছা তো আচ্ছা তোমাদেরকে একটু ব্রিফলি জেনে রাখতে হবে। এবার দুম করে ধরো বললো পার্টিকুলার নিচের একটা কোনো একটা অংশ থেকে বললো এইটা চাই, তো তোমাকেও হ্যাঁ, কিছু পার্ট দেখিয়ে দেবো, কারণ ওর কাছে হতে পারে কিছুটা সফটওয়্যার অলরেডি রেডি আছে, আচ্ছা বাকি আচ্ছা আছে, ঠিক আছে। তো তখন তুমি এখান থেকে ডেসিকে বোঝাতে পারবে, আমি তাহলে তোমাকে দিচ্ছি, আমি জাস্ট স্ক্রিন তুমি শেয়ার তুমি করছি। তুমি বোঝাও, আমি আর দু তিনটে না লিঙ্ক বের করছি, ঠিক আছে, সেম আমার কাছে যেটা তুমি কিছু দিয়েছিলে, আমি ওগুলো খুলছি, নট অ্যান না ইস্যু। না, হ্যাঁ তোমাকে যেগুলো দিয়েছি ঠিক আছে, তারপরেও আমি আরো ডেভেলপ করেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা মানে এর ভিউটা একটুখানি আমি বেটার দেখাতে চাইছি, যাতে ক্লায়েন্ট আরো আচ্ছা আচ্ছা, আমি আপাতত ইয়ে তাহলে হয়ে যায়, ওদেরকে ঠিক এখান আছে। থেকে কিছুটা তুমি দেখাচ্ছি, তুমি তারপর তুমি দেখো। করতে থাকো, আমি শুনছি, যদি কোথাও আমি মনে করি যে তুমি একটু ভুল হ্যাঁ, বলেছো, তো আমি ওখানটা রেক্টিফাই করে ঠিক দেবো, আছে ঠিক আছে। অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। হুম। আচ্ছা, হুম এইখানে হচ্ছে তোমাদের ডেজিগনেশন গুলো, কোম্পানিতে যেগুলো হ্যাঁ ডেজিগনেশন হয় ওখানে কারা তুমি কারা ফিল করবে। আছে ঠিক আছে কারা কারা মানে তুমি ধরো কোম্পানিতে তুমি অ্যাডমিন ফার্স্ট অফ অল এই সফটওয়্যারে, হ্যাঁ তারপরে এইচআর অফিসার বলে কেউ একজন থাকবে, বা হুম ম্যানেজার বানিয়েছে, হুম অ্যাকাউন্টেন্ট। হুম ওই ডেজিগনেশন গুলো এখান দিয়ে বানাতে পারবে। এই ডেজিগনেশনের নাম র্যাঙ্ক কি, ঠিক অ্যাডমিনের আছে র্যাঙ্ক 1, তারপরে 2, 3 ম্যানেজার, এরকম করে তুমি সেভ করতে থাকবে, পরপর জিনিসটা হবে, ঠিক আছে। ঠিক অফিস আছে চার্টে আছে। ঠিক আছে টেকনিক্যালি মাস্টার যেটা আছে, টেকনিক্যালি বেশিরভাগটাই ধরে নেওয়া হচ্ছে তোমার ফর্ম মানে ফিল আপ করো, মানে ইউজারের মেন কন্ট্রোলের জিনিস, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। दादा हेलो। হ্যাঁ, मैं पूछने मांग रहा था दादा, एक चीज मेरे को पहले क्लियर कीजिएगा कि हम लोग का जो काम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये किस बेसिस के लिए, मतलब इसका काम क्या है सॉफ्टवेयर का? देखो इस सॉफ्टवेयर का काम ये है। अच्छा तुम हिंदी है तो मुझे पहले बता देते, तुम हिंदी नहीं नहीं, में। मेरे को बंगाली समझ में आता है, मैं इन पर्सन बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बांग्ला में ये বুঝতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই আমাকে। नहीं नहीं, क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा सिर्फ बंगाली कास्टम क्लाइंट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों का क्लाइंट है। हाँ और गॉट ये इट। क्लाइंट लोगों का क्या है, क्लाइंट लोगों का लोन का छोटा छोटा कंपनी खोलता है, यहाँ पे आसपास भी तुमको मिलेगा। तुम औरकों के घर आते हो तो यहाँ पे मोड़ मार्केट के ठीक पीछे ही एक मिलेगा, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस करके। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोन देता है, ठीक है। ठीक है। जैसे बैंक में लोन देता है ना, गोल्ड लोन, होम लोन, हम्म। ऑफिस लोन, ऐसे कर ग्रुप लोन बहुत सारा होता है, तो ये लोग लोन देता है। तो वो लोन के लिए तो टेक्निकली ये लोग छोटा छोटा बैंक है, ठीक है, माइक्रो ठीक है। फाइनेंस कहते हैं इन लोगों को। हम्म। इन लोगों को तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। हाँ। तो वो सॉफ्टवेयर ये वाला है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके गॉट इट। ये मेनली कंपनी खुद यूज करता है, और इवन एक वेबसाइट से भी ऑपरेट होगा, जहाँ से वो वाला डेटा भी यहाँ पे ही आता है। तो यानी यहाँ से कंपनी का जो हेड है वो पूरा डेटा देख सकता है। यानी सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, हम लोग को बस उसको ये डेमोन्स्ट्रेट हाँ करना है हाँ सामने वाले को, राइट? कि वो हाँ, क्योंकि जो ये जो लोग कितना को सिंपल है, कितना इजी है, ये हम लोग को खाली उसको शो हाँ, करना। आप अब तुम जिसको दिखाओगे वो आदमी भी नया ही कंपनी खोला होगा, हाँ। इसीलिए उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, नहीं तो पहले से ही है। हम्म। ज्यादातर का नया ही क्लाइंट होगा और नया ही उसको चाहिए, तो ओके तब हम लोग ये वाला चीज दिखाएंगे उन लोगों ठीक। को कि कैसा क्या होता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होगा भाई, आप फिर चीजों का आइडिया होगा, सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं होगा, तो वो चीज हम लोगों को दिखाना है। और वो लोग बिना देखे सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 2-3 हजार का नहीं होता है, इसीलिए उसको थोड़ा देख के उसके बाद लेता है कि हम लोग के पास जेन्युइनली है क्या नहीं। हाँ तो वो ठीक। चीज हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम पासवर्ड तो ऐसे दूसरे कंपनी का दे नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, उसको डायरेक्ट कुछ देंगे नहीं। क्योंकि ओके। यहाँ पे दूसरे कंपनी का भी डेटा है, जैसे ये नीचे हेड ऑफिस खुल के रखा है, ये तुम लोगों का डेटा है, ये हम लोग प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते, अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ और तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, कोई डेटा फिलअप मत करना कोई क्लाइंट को दिखाने के टाइम। हाँ 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 ठीक ठीक है है। बाई एनी चांस बता। कोई क्लाइंट जोर करता है, तुम लोग डेटा फिल करते हो, मैं या फिर तूफान किसी एक को ग्रुप में मैं पुट कर दूंगा तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे बस बोल देना कि मैंने ये सेक्शन पे डेटा पुट किया था, क्लाइंट फोर्स किया था, तो हम लोग डेटाबेस में जाके वो और कंपनी का नाम भी बता देना, ठीक है। हाँ ठीक हाँ क्योंकि ठीक तुम ठीक लोगों ठीक। के पास 2-3 कंपनी का सपोज लिंक दे दिया, ठीक है, हम्म कौन सा कंपनी के अंदर कौन सी जगह पे तुमने डेटा टेस्ट किया, तो हम्म। बता देना, ठीक है। ঠিক। সৌগতদা, हाँ একবার লোন সেকশনটায় ক্লিক করো, কোথায় আছে বলো তো? লোন সেকশন নিচে নিচে এই নিচে তো এই তো মডিফিকেশনের মডিফিকেশন উপরে। ওপরে हाँ এটা দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, লোন সেকশনটা খোলো, নর্মাল জাস্ট মেনুটা হ্যাঁ, দেখো আমাকে। তোমাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা লিংক দিচ্ছি, ঠিক আছে, ওটা খুলবো। অ্যাজ ইট ইজ সেম আছে। হুম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে পাঠাও, তাহলে ওটা দিয়ে লগ ইন করে দেখাচ্ছি, অসুবিধা নেই। তুমি
এটা দিয়ে দেখো, কেননা ওটাতে আর তোমার শুধুমাত্র নর্মাল পার্সোনাল লোন আর গ্রুপ লোন আছে, বাট আরো তো আদার্স লোন আছে না। ঠিক আছে, ওটা দাও, আমি লগ ইন। পাসওয়ার্ড কি একই আছে? পাসওয়ার্ড না, পাসওয়ার্ডটা পাসওয়ার্ড পাঠাও আমাকে তাহলে পাসওয়ার্ড একবার। আমি তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা একটু দাঁড়িয়ে ও পাঠাচ্ছে, আমি তাহলে ওটা লগ ইন করছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আচ্ছা, আছে। এখানে এমপ্লয়ি র্যাঙ্ক আর রিলেশন মাস্টার অব্দি গেছিলাম। এই রিলেশনের মধ্যে ব্যাংকে দেখো না কিছু কিছু ফিল আপ থাকে, ফাদার মাদার সিস্টার, কে কি রিলেশন হয়, মানে টেকনিক্যালি তুমি সব ডেটা দিচ্ছ ওকে, ঠিক আছে? হুম। ফাদার মাদার সন কি রিলেশন হতে পারে, এটা মানে সাম সর্ট অফ রেকর্ড রাখছে সফটওয়্যারটা। এটা এই পার্টটাই রেকর্ড রাখারটা, এই মাস্টার বলে যেটা লেখে। এরপরে অনেক জিনিস আছে, দেখো এটার মধ্যে আছে ব্রাউজার কি হতে পারে। বড় আর হ্যাঁ, তো ওই জন্য আমি বেসিক থেকে তোমাদের একদম গ্রাউন্ড থেকে দেখাচ্ছি কি আছে, কারণ তোমাদের তো তোমরা দুজন এটার সম্পর্কে আইডিয়া নেই। আমি যখন সফটওয়্যার বানাই আমার নলেজ আছে, মিডল থেকে দেখলেই হয়ে যাবে, তো তোমাদেরকে ডিরেক্ট দেখাতে হবে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে রিলেশন মাস্টারের পর গেল হচ্ছে অ্যাকাউন্ট কোড সিকোয়েন্স। ওই দেখবে, আচ্ছা তুমি এটা একটু বোঝাও তো তুফান, বলো, অ্যাকাউন্ট কোডের এই জায়গাটা। বুঝিয়ে দিচ্ছি। ये अकाउंट कोड सीक्वेंस में क्या होता है कि इधर देखो ऊपर में मेंबर का एक कोड है, एम्प्लॉय का कोड है, पर्सनल लोन है, हर एक चीज का एक यूनिक सा कोड होता है, ठीक है। जब भी तो, लोन लेने के लिए जाओगे कोई भी, लोन का एक लोन आईडी जनरेट होता है, ठीक है। मेंबर का एक यूनिक सा कोड जनरेट होता है, या फिर जो भी कलेक्टर कलेक्शन के लिए जाता है उसका एक यूनिक सा कोड जनरेट होता है, ठीक है। वो कोड का पैटर्न क्या रहेगा वो यहाँ से सेट होता है, ठीक है। जैसा कि मेंबर कोड में स्टार्टिंग में क्या है, एनकेबी प्रीफिक्स में, ठीक है। मतलब जब भी कोई भी नया मेंबर क्रिएट होगा उसका फास्ट में एनकेबी वर्ड आएगा। स्टार्ट फ्रॉम मतलब कौन से डिजिट से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट एक मेंबर कोड के अंदर टोटल कितना डिजिट का होगा वो, और लास्ट नंबर कितना चल रहा है अभी, ये सब कुछ जब सेट करोगे प्रीव्यू कोड पे, अब तुम लोगों को दिखाई देगा कि वो एक मेंबर कोड कैसा दिखेगा रेडी होने के बाद। रेडी होने के बाद। ऐसा जितना भी चीज होगा तुम्हारा, पर्सनल लोन, ग्रुप लोन, गोल्ड लोन, प्रोडक्ट लोन, प्रॉपर्टी लोन, मॉर्गेज लोन, ठीक है। जो कुछ भी होगा उसका कोड सीक्वेंस सेट होता है। इवन जो भी पॉलिसी बनता है, ठीक है, पॉलिसी मतलब क्या होता है, बैंक में देखना एफडी होता है, ठीक है, सीआरडी होता है जो डेली डिपॉजिट होता है, और आरडी भी होता है रिकरिंग डिपॉजिट का, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉलिसी के अंदर आता है। तो ये सब कुछ जितना भी चीज होगा उसका हर एक का यूनिक आईडी, जो यूनिक कोड जनरेट होगा उसका कोड का सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो यहाँ से सेट होगा। गॉट इट। तो ये राइट साइड पे देख रहे हो ना प्रीव्यू कोड, वहां से वो एग्जांपल है, जब यहाँ पे इनपुट डाला जाएगा कि मेरे को कैसा क्या चाहिए, वहाँ पे रिजल्ट निकल करके आएगा। हाँ, वैसे वो सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट फ्रॉम देख रहे हो ना, एक एक वैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते वो बढ़ते रहे। ठीक है। अच्छा तूफान, उन लोगों को थोड़ा पहले आगे बढ़ने से पहले कितना कितना टाइप का लोन होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि इन लोगों को जानना जरूरी है। एक तो पर्सनल लोन होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्को एंड साकित, आप एक बार कहीं पे नोट डाउन कर लो ये चीज, ठीक है? एक मिनट, फोन में या कहीं पे भी जहाँ से भी आप अवेलेबल हाथ के सामने जो है। নালে শঙ্করদা তুমি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে দাও না, আমি ওখানে লিখে দিচ্ছি কত রকমের লোন হবে, তাহলে একটা জায়গায় থাকলে হারিয়ে যাবে না কোথাও, সুবিধা থাকবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি জানা প্রচুর ধরনের লোন হয়, বুঝলে তো। ঠিক আছে ঠিক আছে, अब लोगों को तो 3-4 पता था। তো আমি গ্রুপে অ্যাড করছি, তুই সাকিতকে একটু সাকিতকে ঢুকাচ্ছি।
অ্যাড করো। হুম। হ্যাঁ, একটা গ্রুপে অ্যাড করে দিয়েছি। তোকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিচ্ছি। ও ঢুকিয়েও নিয়েছিস? হ্যাঁ, ঢোকাচ্ছি ওকে। হ্যাঁ, তুফান তোমাকেও ঢোকাচ্ছে। অ্যাড করে নিয়েছি। হুম। আচ্ছা, তুফান আমার চ্যাটে না লিখে ডাইরেক্ট ওখানে লিখে দেবো। না তোমাকে অন্য জিনিস লিখছি আমি। ও আচ্ছা। ও তোমাকে আচ্ছা, যে ইউআরএলটা দিলাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা লগ ইন করবো। এটা লগ ইন করো। না, তোমার আইডি পাসওয়ার্ড সবই দিয়ে দিয়েছি আমি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা লগ ইন করো, তারপরে মাইক্রোফিন্যান্স বলে এইটা না? হ্যাঁ, পরে নাম পাল্টে দেবো, আপাতত এটাই থাক। আচ্ছা, তুফান, তুমি বলতেও থাকো আর ওখানে লিখতেও থাকো, প্রত্যেকে বেটার এক্সপ্লেনও করা যাবে। তা আমাকে মনে করে করে আগে লিখে নিতে হবে, তুমি তখন বোঝাতে থাকো। अच्छा এটা হয়ে গেল हाँ, অ্যাকাউন্টস কোড সিকোয়েন্স। अकाउंट्स कोड सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर में क्या होता है, दो तरह का होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोन समझना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी पूरा बैंक का लोन का सिस्टम है, वो इसके अंदर है। तो तुम लोगों को भी थोड़ा सा लोन का नॉलेज रखना पड़ेगा डेमो देने की टाइम पे, ठीक है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, वो चीज यहाँ पे है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में ये चीज क्या है, ये ना कैलकुलेट करते हैं। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट आरडी करके शॉर्ट फॉर्म में है। प्रिंसिपल अमाउंट डालोगे, इंटरेस्ट रेट डालोगे, कितने टर्म का होगा ये देखो, ठीक है, कितने महीनों का होगा। टर्म ये क्या टर्म 3 महीने के लिए होता है ना, या 6 महीने तूफान? কোনটা টার্ম? ये टर्म রেকারিং ডিপোজিট। রেকারিং ডিপোজিট তো এটা তোমার ডেইলি বেসিসে, দিনের হবে। हाँ, ये डेली बेसिस में होता है। उसके बाद ये कैलकुलेट करके तुमको यहाँ ডেইলি पर বেসিসে মানে তোমার কি এটা, তুমি সরি আমি ভুল বললাম, ডেইলি না, তলায় দেখো যেগুলো পয়েন্ট রয়েছে না, হ্যাঁ। উইকলি, মান্থলি, কোয়ার্টারলি, তোমার রেকারিং মানে তুমি অটোমেটিক্যালি কিরকম ইয়েতে তুমি তুলতে চাইছো টাকাটা, মানে এইচএলওয়াইটা কি আছে? হাওয়ারলি, ये ঘন্টায় তুমি ওতে চাইলে তুলতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা এরকম কিছু কোম্পানি আছে যারা ওই 10 টাকা 5 টাকা করে রেকারিং করতে থাকে, তারা কি করে হাওয়ারলি বেসিসে 1 ঘন্টা অন্তর অন্তর ধরো 10 টাকা করে তুলতে থাকছে। ও আর টার্মের পাশে দেখো একটা ড্রপ ডাউন আছে, মান্থ বলে সিলেক্ট করা, ওটা সিলেক্ট করো শুভঙ্কর দা। এটা মানতেই আছে খালি। ওরা মান্থে, এই কোম্পানিটার বেসিক্যালি রিকোয়ারমেন্টই ছিল যে এটা মান্থে ওরা তুলতে থাকবে রেকারিং ডিপোজিটটা, আচ্ছা ওই জন্য ওটাকে আমরা ফিক্সড করে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এখানে ডেইলি মান্থলি করা যাবে, কম্পাউন্ড ইন্টারভ্যালটা কিরকম চাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, ক্যালকুলেট হয়ে এখানে অ্যানসার আসবে। ক্যালকুলেট আচ্ছা, এখানে দু রকম ক্যালকুলেশন হয়, ঠিক আছে। দু রকম ক্যালকুলেশন মিন্স কি, একটা হচ্ছে ফিক্সড ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়, ঠিক আছে, মানে আমি এত টাকা আমার বছরে হলো, আমি সাপোজ ধরো প্রত্যেক মাসে 100 টাকা করে জমা করছি, তো আমার এক বছরে 1200 টাকা, 1200 টাকার উপর একটা ধরো 10% ইন্টারেস্ট আমি পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। আর একটা হয় কি, যেটা কম্পাউন্ডে বেসিক্যালি হয়, তোমার আমি জানুয়ারি মাসে যদি 100 টাকা জমা করি, সেই 100 টাকার কিন্তু ইন্টারেস্ট পাবো আমি 12 মাস। ফেব্রুয়ারি মাসে যখন আবার আমি 100 টাকা জমা করব, তাহলে আমার কি হলো,
100 টাকার ইন্টারেস্টটা তো যেরকম চলছে জানুয়ারি চলবে, ঠিক আছে? হুম। ফেব্রুয়ারিতে যে 100 টাকাটা ইনভেস্ট করলাম, সেই 100 টাকাটা কিন্তু 11 মাস ইন্টারেস্ট পাবো, ঠিক আছে? তুমি যেরকম বেসিসে ইনভেস্টমেন্ট করতে থাকবে, সেই যবে ইনভেস্ট করবে তবে থেকে তোমার ইয়ারের এন্ড অফ দ্য ইয়ার গিয়ে তোমার কিন্তু ক্যালকুলেশন হবে কত বুঝতে পার্সেন্টের উপর, ঠিক বুঝতে আছে? পেরেছি। হ্যাঁ, 11 মাসে হবে, হুম ফেব্রুয়ারি থেকে ইনভেস্ট করলে। ফেব্রুয়ারি থেকে করলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আচ্ছা মানে এটা কি তাহলে डिपॉजिट किया মার্চে যদি जाएगा उसके बाद वाले से होगा তো कैलकुलेट। মার্চে যদি ইনভেস্ট করি তাহলে কি ওটা কমবে আরো? আরো কমবে, মানে वो তোমার जिस भी मंथ में অ্যাকচুয়াল, इन्वेस्ट करेगा उसके बाद वाले से वो হ্যাঁ कैलकुलेट होना অ্যাকচুয়ালি चालू তুমি होगा। পলিসি বানাচ্ছো জানুয়ারিতে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? হ্যাঁ। বাট তুমি যখন জানুয়ারি থেকে তো তুমি ইনভেস্ট করছো, অসুবিধা নেই। তোমার মার্চে গিয়ে যে টাকাটা কাটার কথা, সেই টাকাটা যখন কাটছে কোম্পানি, অবভিয়াসলি মার্চে তুমি কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছো, হ্যাঁ, ঠিক আছে? কোম্পানি তো তোমাকে 12 মাসে ইন্টারেস্ট দেবে না ওই টাকাটার জন্য, হ্যাঁ। কারণ তুমি তো মার্চে ইনভেস্ট করছো। তুমি 10 মাসের ইন্টারেস্ট পাবে, আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝে গেছি। তাই না? তার হুম। আগে যেরকম তুমি 100 করে 200 ইনভেস্ট করছো, সেটা যেরকম যা টাইম পিরিয়ডে ছিল সেই অনুযায়ী তোমার ইন্টারেস্ট পেতে পেতে থাকবে। একদম লাস্টে গিয়ে কি হবে, তুমি যদি ডিসেম্বরে কিছু ইনভেস্ট করো, সেটা তোমার 1 মাসেরই কিন্তু ইন্টারেস্ট পাবে, ও, বুঝে গেছি, বুঝে গেছি। থ্যাংক ইউ। সেইটুকু পার্টের টাকাটা। আহ বাকিটা যেরকম চলতে চলতে আসছে আসবে। বুঝে গেছি। अच्छा इसके बाद है फिक्स डिपॉजिट। तूफान হ্যাঁ, फिक्स डिपॉजिटও সেম তো? ফিক্সড ডিপোজিট ये तो নর্মাল सिंपल। তোমার হ্যাঁ ব্যাংকের এফডির মতো, ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট, হ্যাঁ এখানে জাস্ট প্রিন্সিপাল নর্মাল অ্যামাউন্ট ব্যাংকের মতো। কি টার্ম হবে সেটা লিখতে হ্যাঁ, হবে। তুমি আর কত মাসের জন্য ইনভেস্ট করছো সেটা তোমার হ্যাঁ জাস্ট ইয়েতে ক্যালকুলেট, ব্যাস। বাস কম্পাউন্ড হয়ে মান্থলি হয়ে এখানে চলে আসবে। আচ্ছা প্ল্যান টেবিল এখানে নিচ দিয়ে চলে আসবে, যেরকম একটা রয়েছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। কি কি প্ল্যান কোম্পানি দেবে, যেমন 6.375 ইন্টারেস্টে ওদের একটা আরওআই চলছে, ঠিক আছে? এটা আমরা এখানে পুট করে করতে পারবো হুম। রেট অফ ইন্টারেস্টে। আচ্ছা প্রোডাক্ট মাস্টার ছিল এটা। हाँ अच्छा, लेकिन एक चीज पूछना था, ये जो रिकरिंग डिपॉजिट वाला है, इसका इंटरेस्ट जो रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है कि वो भी काइंड ऑफ फिक्स्ड की तरह रहता है? नहीं, वही फ्लेक्सिबल है। रिकरिंग वाले में। एफडी का तो अब मान के चलिए, एफडी का जनवरी मंथ में 12 मंथ के लिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है? हम्म। कंपनी दे रहा है 12 मंथ के लिए 6.75%, हम्म। ठीक है? तो आपने 10,000 एफडी किया, तो 10,000 के ऊपर 6.75% आपको मिल जाएगा, ठीक। ठीक है? ठीक है ग्लोबल কনফিগারেশন সেটিং। হুম। এ তুফান এটাতে কি বানিয়েছো এটা? এটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি যাদের শেয়ার হোল্ডার থাকে না কোম্পানির, সেই শেয়ার হোল্ডারদের কত কি শেয়ার থাকবে, কত কি পার্সেন্টেজ থাকবে সেটা থাকে, ঠিক আছে? এর আলাদা রিকোয়ারমেন্ট ছিল এই কোম্পানিটা, এইটাকে তুমি আপাতত স্কিপ করো, মানে এইটা ওদের পার্সোনাল রিকোয়ারমেন্ট ছিল, ঠিক আছে, ওই কোম্পানির। ওকে ওকে তুমি ওইটাতে লগ ইন করো না, ওইটা ভালো রয়েছে। अच्छा তোমার যেটা দিলাম এক্ষুনি, ওটাতে লগ अच्छा ইন করো। ये दूसरा एक कंपनी का है, मगर ये थोड़ा अच्छे से इसका डिजाइन और यूआई अच्छा है, देखो पाई चार्ट वाई चार्ट वगैरह है, হ্যাঁ। डैशबोर्ड थोड़ा बेहतर तरीके से है। अच्छा ब्रांच मास्टर है, फाइनेंशियल ईयर से दिखा रहा हूँ, ये नया है यहाँ पे। यानी कस्टमर अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। हाँ 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 ये सैंपल इसीलिए दिया गया है, मैं तुम लोगों को 2-3 का एक्सेस देके रखूंगा, डेमो दिखाना है जब। ठीक। আচ্ছা আহ, আচ্ছা তুফান এটাতে তুমি একটু এক্সপ্লেন করো, কারণ এটা নতুন, আমিও দেখিনি আগে। একই আছে, করতে থাকো। এই সময় ফাইন্যান্সিয়াল পাচ্ছ ইয়ারে না। কি আছে এটা? ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হচ্ছে প্রত্যেকটা ইয়ার তোমাকে সেট করতে হবে হ্যাঁ বছরে অ্যাকাউন্টসের জন্য ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। একটা 23-24 কবে থেকে শুরু হচ্ছে বছর, কবে গিয়ে শেষ হচ্ছে, এই যা। আচ্ছা আচ্ছা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটা সেট হবে। হুম হুম। অ্যাক্সেস টাইপ, ইউজার টাইপ, অ্যাক্সেস টাইপ। আচ্ছা এটা কি কি ওদের ইয়ে হবে সেইগুলো তাই তো, কে কে অপারেট করছে? ইউজার টাইপ মিনস হচ্ছে এখানে ডেজিগনেশন, হ্যাঁ ঠিক আছে? একটা ব্রাঞ্চ অপারেশনের মাঝে হুম একটা কাজ করো শঙ্কর দা, হ্যাঁ
আচ্ছা, খুবই ইউজার simple টাইপটাই বলবে? খোলা রাখো, আপাতত ইউজার টাইপটা খোলা রাখো, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলে নি, ওদেরকে লোনটা একটু বুঝিয়ে দিও একবারে। বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইউজার টাইপ মানে হচ্ছে একটা, সাপোজ ধরো তুমি, তোমার কাছে একটা ব্যাংক আছে, ঠিক আছে? একটা ব্যাংকের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাকে, হুম, হুম ব্রাঞ্চের একটা পার্ট থাকে, সিনিয়র ম্যানেজার থাকে, জুনিয়র ম্যানেজার থাকে, কি যারা ক্যাশ কাউন্টারে বসে তাদের একটা ডেজিগনেশন আছে, তাই না? হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা ইউজারের টাইপ, ডেজিগনেশন, আচ্ছা, ক্লিয়ার? हाँ हाँ এগুলো হচ্ছে এক একটা টাইপ। এবার এখানে বিভিন্ন রকমের পারমিশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? ব্যাংকে দেখবে যে ম্যানেজার হয় তার কাছে সব থেকে বেশি পারমিশন থাকে। সে চাইলে কোনো ডেটাকে ডিলিটও করতে পারে, এডিটও করতে পারে। কিন্তু না তুমি যদি নর্মাল কোনো ব্যাংকের রিসেপশনে গিয়ে বলো যে আমার এই ডেটাটাকে ডিলিট করে দাও, এটাকে একটু আপডেট করে দাও, সে কি করবে? করবে না, কারণ তার কাছে পারমিশনই নেই। हम्म অ্যাজ ইট ইজ সেম পারমিশন দেওয়া হয় এখান থেকে। ব্যাক ডেট মিনস আজকের ডেটে বসে দাঁড়িয়ে আমি কোনো ব্যাক ডেটে, মানে কাল বা পরশু দিন চলে যাওয়ার দিনের কোনো একটা ডেটে কিন্তু আমি এন্ট্রি করতে পারি, ঠিক আছে? হুম এক্সটেন্ড বলে যেটা রয়েছে, এক্সটেন্ড মিনস আমার কাছে যদি ব্যাক ডেটের পারমিশন থাকে তাহলে সেটা কত দিনের পুরনো এন্ট্রি আমি করতে পারি, আচ্ছা ঠিক আছে? হ্যাঁ আপডেট মিনস আমি কোনো ডেটাকে আপডেট করতে পারি কি না, কোনো ট্রানজ্যাকশনকে, ঠিক আছে? ডিলিট হ্যাঁ হচ্ছে ডিলিট করতে পারি কি না, সেম, ঠিক আছে? হ্যাঁ আর র্যাঙ্ক হচ্ছে ওই বিএ বেসিসে একটা র্যাঙ্ক চলে, ওদের কমিশনের ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? হুম অল প্ল্যান যেটা রয়েছে, অল প্ল্যান মানে হচ্ছে বিভিন্ন লোন যখন বানানো হয়, প্রত্যেকটা লোন কোনো না কোনো একটা স্কিমের আন্ডারে আসে, ঠিক আছে? হুম স্কিম মিনস কি, দেখবে তোমরা যেমন পলিসি বানাতে যাও, এলআইসি বানাতে যাও বা কিছু বানাতে যাও, তোমার বলে না এই স্কিমটা চলছে হুম বা এফডির এই স্কিম চলছে। এখানে হচ্ছে সেম, তুমি কোন ইউজারকে, কোন ডিপার্টমেন্টকে কতগুলো স্কিম তুমি দেখাতে চাইছো সেটা, ঠিক আছে? রিপ্রিন্ট মানে হচ্ছে তোমার সার্টিফিকেট বলো বা লোনের কোনো ডকুমেন্ট বলো, সেগুলো কি বারবার কেউ প্রিন্ট করতে পারে নাকি ওয়ান টাইম প্রিন্ট করতে পারবে সেটা, ঠিক আছে? হুম অল বিআর রিপোর্ট যেটা মানে হচ্ছে রিপোর্ট সেকশনের কাজ, কোন রিপোর্ট কাকে তুমি পারমিশন দিচ্ছ, কোন ডিপার্টমেন্টকে, ব্যাস, দ্যাটস ইট। বাসে তো এডিট ডিলিট, गॉट ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে তোমার ডিপার্টমেন্ট, এক একটা ডেজিগনেশনে এক একটা ডিপার্টমেন্টকে তুমি পারমিশন দিচ্ছ, হুম ঠিক আছে? তোমার ইউজার টাইপের পর কি আছে? মেনু পারমিশনস। মেনু পারমিশন তো অ্যাজ ইট ইজ কোন ডিপার্টমেন্টকে তুমি কি পারমিশন দিচ্ছ, एखान ঠিক থেকে আছে? यहाँ से तुम लोग एक्सेस दे सकते हो, ठीक है? अच्छा, अच्छा वो जो ऊपर में जो था उसका परमिशन यहाँ से अलाउ किया हाँ जाएगा हाँ हाँ, हाँ हाँ, जैसे यूजर का टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच हम्म मैनेजर, ये देखो ऑलरेडी एक्सेस दिया हुआ है। ठीक হুম और कोई नया मेनू वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक अच्छा, उसके बाद है रिलेशन मास्टर, तो ये वहाँ से ही दिखा दिया था। হুম वो क्या ये क्या, रिले मेनूटा रिलेशन खोलो। मास्टर तो नहीं आया था मेरे ख्याल से एक मिनट, मैं अरे बोल रहा हूँ, फादर मैंने भेजा ये था। थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है? जो शुभंकर दा ने दिखा है अभी तक, हाँ उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। इधर रिलेशन मास्टर, ऑक्यूपेशन मास्टर, ये दोनों ही बस सिंपल है। रिलेशन कौन सा रिलेशन आप सेट करोगे, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, व्हाटएवर, ठीक है? ठीक ऑक्यूपेशन आप क्या क्या सेट करोगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है क्या, कोई बिजनेसमैन है, कोई ओ आईटी में अच्छा है, कोई कॉल सेंटर में है, कोई হুম इसका दुकान है, बस ऐसा, समझा ठीक है? इसका एक मास्टर, ये हर जगह पे इफेक्ट गिरेगा इसलिए, ठीक ठीक है है? चलो, रिलेशन को हटा रहा हूँ। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी सेम ही है जैसे तूफान बोला अभी। আচ্ছা, শুভঙ্কর দা, হুম, এখনো অবধি কোনো কি এনবিএফসি এসছে? হ্যাঁ এনবিএফসি আছে কিন্তু মানে ডেমো দেখাইনি এখনো। এনবিএফসি এর ডেমোটা, কিন্তু কালকে ফোন করে আবার ডেমোর জন্য টাইম চাইবো, ঠিক ডেমো আছে? দেখতে চেয়েছিল। এনবিএফসি ডেমো যে দেখাবে তাকে কিন্তু খুব ভালো করে বোঝাতে হবে, কারণ এনবিএফসি তে কিন্তু শুধু লোনের পার্ট কিন্তু নয়, ঠিক আছে? এটাতে কি এটা এনবিএফসি না শুধু এটা মাইক্রো? এনবিএফসি না, এটা নর্মাল লোন, ঠিক আছে? এনবিএফসি কিন্তু লিড বোঝাতে হবে আগে, মার্কেটে ঘুরে আগে লিড তৈরি হয়, সেই লিড থেকে
পুরো ফিল্টারেশন হয়ে দেন একটা মেম্বার তৈরি হয়, তারপরে গিয়ে সে লোন পায়। এটা কিন্তু এনবিএফসির নিয়ম। ঠিক আছে, ওদেরকে আমাকে বোঝাতে হবে। ওরা ঘেরে ফেলবে, ওরা এক্ষুনি ঘেরে ফেলবে। ঠিক আছে, हाँ, তোমাকে নর্মালটা দেখাও। अच्छा, रिलेशन ऑक्यूपेशन मास्टर हो गया। कोड कोड सीक्वेंस एज इट इज सेम। वहाँ पे जो कोड देखे थे ना, जैसे कोड बन हाँ रहा था, हाँ 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 ये देखो सेम टू सेम। ओके। अच्छा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे भी सेम हुआ है। बैंक अकाउंट मास्टर, बैंक अकाउंट मास्टर क्या होता है कि एक ये जो कंपनी है, ठीक है, इसका 2 बैंक हो सकता है, 3 बैंक भी हो सकता है, 4 बैंक भी हो सकता है। मान लो एचडीएफसी में भी अकाउंट है, आईडीएफसी में भी है, एक्सिस में भी है, व्हाटएवर। ठीक है, ठीक। तो उस बैंक का डिटेल्स इधर भर के फिल अप करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ईएमआई लिया या फिर लोन डिसबर्समेंट हुआ, ठीक है, वो मान लो कंपनी कैश में नहीं किया, वो बैंक के थ्रू किया, तो क्या होगा, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वहां से डेबिट होगा। अगर डिसबर्समेंट हो रहा है तो कंपनी के ये इधर जो बैंक अकाउंट फिलअप करेगा, इस बैंक से वो डेबिट होगा, और जो कस्टमर होगा उसका अकाउंट पे क्रेडिट होगा। हाँ, ठीक है, तो क्लाइंट का मान लो 2-3 बैंक है, कौन सा बैंक से डेबिट होगा वो तो कस्टमर को पता चलना चाहिए। नहीं तो लास्ट में क्या होगा, कस्टमर ने कोई लेजर नहीं मिला पाएगा, कोई कैश बुक नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, डे बुक भी नहीं। तो इसीलिए उसका बैंक अकाउंट इधर फिलअप करते हैं। ठीक है, और अच्छा, वो भी ब्रांच भी चूज कर देते हैं, कौन से ब्रांच को कौन सा अकाउंट दिखना चाहिए। तो उसका एक्चुअल रिकॉर्ड्स भी लेकिन यहाँ पे रजिस्टर होता है, स्टोर होता है। हाँ, ओके। এটা হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মাস্টারটা তো। हाँ हाँ। আচ্ছা আচ্ছা। अब रैंक यानी अगर कोई कस्टमर चाहे कि उसका अकाउंट से कितना क्या पैसा निकल रहा है, किस ब्रांच से निकल रहा है, वो यहाँ से वो मॉनिटर कर सकता है उसको। कस्टमर नहीं, क्लाइंट, हाँ, कंपनी। मतलब कंपनी। फॉर एन एग्जांपल वही जो हाँ। क्लाइंट जो देख रहा है, हमारे लिए हाँ। तो वो कस्टमर ही हुआ। हाँ, अच्छा, ये है रैंक मास्टर। ये वो बैंक का रैंक कौन सा हिसाब से था, वो वाला चीज है। फील्ड ऑफिसर, मेरा कलेक्टर है। हाँ। কমিশন মাস্টার। खोलो कमीशन मास्टर। हाँ, लोड नीचे है। ये कमीशन मास्टर क्या होता है, कौन से रैंक पे जो होल्ड कर रहा है। ठीक है, मान लो एक कलेक्टर एक रैंक पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, उस रैंक में जितना भी कलेक्टर होगा उसको कितना कमीशन मिलेगा, अगर वो लोन डिसबर्स करता है या फिर जितना ईएमआई कलेक्ट किया है उसके ऊपर बेस करके, कौन सी स्कीम पे किया है। ठीक है, ডিসপার্স মানেটা একবার বলো। ডিসবার্স মানে ফার্স্টে হচ্ছে লোন রিকুইজিশন হয়। ঠিক আছে, যখন তুমি ব্যাংকে যাবে কোনো লোনের জন্য, ফার্স্টে থেকে ফর্ম ফিল আপ করলে, ঠিক আছে, ফর্ম ফিল আপ করে ওটা সাবমিট করে চলে এলে, দেন লোনটা অ্যাপ্রুভ হয়, ভেরিফাই হয়, হয়ে অ্যাপ্রুভ হয়। ঠিক আছে, অ্যাপ্রুভ হওয়ার পর ডিসবার্সমেন্ট হয়। ডিসবার্সমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি যখন লোনের ফর্মটা জমা দিলে, তারপরে অ্যাপ্রুভ হলো, এবার তো তোমার অ্যাকাউন্টে তো টাকাটা আসবে, লোনের অ্যামাউন্টটা তো তোমার অ্যাকাউন্টে আসবে, এটাকেই বলা হচ্ছে ডিসবার্সমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কোম্পানি যে কোম্পানি থেকে তুমি লোন নিচ্ছ সেই কোম্পানি তোমাকে টাকাটা দিচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপর থেকে ইএমআই শুরু হয়ে যায়। ঠিক আছে ঠিক আছে। अच्छा, इसके बाद है बायोमेट्रिक। ये जो बायोमेट्रिक तो बायोमेट्रिक लॉक की तरह है। ठीक है, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस में बायोमेट्रिक स्कैनर, बस कोई भी चाहे लॉगिन पे यूजर आईडी के जगह पे वो बायोमेट्रिक स्कैन करके लॉगिन करे। हाँ, ओके। तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मास्टर के अंदर जो जो चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब लोन कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। लोन कैलकुलेटर, इससे हम लोग लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल दिया हुआ है, किस टाइप का लोन है। फ्लैट लोन हो सकता है, रिड्यूसिंग लोन हो सकता है। ठीक है, जैसे फ्लैट लोन ले रहे हो, उसके बाद फ्लैट और रिड्यूसिंग में फर्क पता है? पता। बस तो फिर ठीक है। अच्छा, ये क्या तो होता है फ्लैट में, আমি क्या জানি होता না, है আমি জানি না। फ्लैट में, क्या होता है फ्लैट में फॉर एन एग्जांपल अगर 1 लाख का 15% कोई ले रहा है तो 15,000 रुपया उसको फ्लैट देना ही पड़ेगा, चाहे
आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू रेट कमाए बढ़ाए, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स रहेगा। रिड्यूसिंग पे रिड्यूसिंग में जैसे करके फ्लोटिंग रेट्स रहेगा, रेट ऊपर नीचे होते रहेगा। अगर नहीं रेट बढ़ गया तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, नहीं रेट नहीं गिर गया तो नहीं कम। नहीं अच्छा, रिड्यूसिंग है तो सॉरी, जितना प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा देते जाऊंगा उतना फ्लैट कटते में जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, मान लो तुम्हारा 1000 ईएमआई हुआ, ठीक ठीक है। है। फ्लैट हाँ। में क्या होता है, हमेशा उस 1000 के अंदर, मान लो 12 महीने का टर्म है, ठीक है, 12 महीने तुम 1000 करते डिपॉजिट कर रहे हो, उस 1000 के अंदर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा वो सेम रहेगा हर महीने। मतलब 1000 के अंदर मान लो 500 तुम्हारा प्रिंसिपल पे जा रहा है, 500 इंटरेस्ट पे जा रहा है, हम्म। ठीक है। तो ये 12 महीने तक ऐसा ही चलेगा, ठीक है। ठीक है। और रिड्यूसिंग में क्या होता है, रिड्यूसिंग में जैसा कि बैंक में कोई होम लोन पे, अगर तुम होम लोन लेते हो, देखना तुम्हारा प्रिंसिपल कम कट रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा कट रहा है। किसी ने अच्छा। देखा है होम लोन का स्ट्रक्चर, किसी ने देखा? नहीं ना नहीं। भाई। सुनो, पहला बात, ये जो रिड्यूसिंग पे क्या होता है, जब फर्स्ट ईएमआई तुम देने जाओगे, ठीक है, हम्म। वो जो 1000 तुम पे कर रहे हो उसके अंदर 900 का इंटरेस्ट जाएगा, 100 रुपया का प्रिंसिपल जाएगा। जब अच्छा। तुम सेकेंड ईएमआई पे करने जाओगे तब तुम्हारा 850 जाएगा इंटरेस्ट पे और 150 जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल पे। ऐसा अच्छा। करते करते ये रिड्यूसिंग इसलिए बोलता है, इसका देखो, अगर तुम 12 महीने तक कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कमेगा, हम्म। जो ईएमआई पे कर रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट का परसेंटेज घटेगा और हाँ। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। गॉट इट। ये होता है रिड्यूसिंग और फ्लैट का अंतर। ओके। ठीक है, ये तो गया लोन स्कीम। ये उसका टेबल है, जो जो लोन का बारे में बोला, पर्सनल लोन, मंथली क्या है, आरओआई क्या है, सबका डिटेल्स ये टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट लोन है, इसके पास और कुछ लोन है, तूफान यहाँ पे इसके पास प्रोडक्ट लोन के अलावा और कुछ है? পার্সোনাল লোন আছে মনে হয়, সার্চ করো উপরে, সার্চে লেগো পার্সোনাল বলে। ना बनाई नहीं, पर्सनल लोन बनाई नहीं। इधर क्या होता है, ये अब जो आप लोगों को पहले बताया था ना, एक लोन देने के लिए लोन का स्कीम बनाना पड़ता है, वही स्कीम यहाँ से बनता है। একটা ओके। বানাতে ঢোকো, হুম। তোমাকে দা একটা হ্যাঁ। নিউ স্কিম করো না। হুম। সার্ভারটা কি ইয়ে আছে নাকি গো তুফান, নাকি আমার নেটের জন্য নেট হচ্ছে? কানেকশনের ইস্যু। আচ্ছা, দাঁড়াও, দাও, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে তুফান? হুম হুম হুম। হ্যাঁ বলো এবার। स्कीम कोड, स्कीम नेम एक तूफान। स्कीम का एक स्कीम का जो रेट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक लोन के लिए तो एक ही स्कीम नहीं होगा, या फिर एक मेंबर के लिए तो एक स्कीम नहीं होगा। मैंने एक स्कीम बनाया, जो स्कीम 10 20 30 जितने भी चाहे मैं मेंबर का लोन के साथ अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं पुट करूंगा उधर, वो कितने से कितना तक होगा, मतलब मिनिमम आरओआई और मैक्सिमम आरओआई। ठीक। मैंने सेट कर दिया मिनिमम आरओआई 10%, मैक्सिमम आरओआई 20%। तो अगर जो लोन बनाने जाऊंगा, जब ये स्कीम चूज करूंगा, हम्म। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे को पुट करना है वो बिटवीन 10 to 20 के अंदर ही पुट करना है, ठीक। उसके बाहर वाला नहीं लेगा, ठीक है। एज इट इज सेम अमाउंट के लिए भी है, टर्म के लिए भी है, एज के लिए भी है, ठीक है, सिविल स्कोर के लिए भी है, गॉट इट। ठीक है। ये प्रोडक्ट लोन का स्कीम की तरह ही बनाया गया है। कैटेगरी चूज करो सोहम को एक बार। हाँ एक सेकेंड, ক্যালকুলেশন ক্যাটাগরিজ কোথায় আছে? হ্যাঁ এই তো, পেয়েছি। হ্যাঁ, কিছু এসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কিছু হচ্ছে না দেখতেই তো? পাচ্ছি না, স্ক্রিনে কিছু দেখতেই পাচ্ছি না আমি। এটা তোমার দেখতে পাচ্ছ? না আসেনি। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বাবা, আমার আটকে গেল ওটা। এবার
না দেখতে পাচ্ছি না, মাউস নড়ছে কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে না। এটা কি তোমার হাইড করা আছে নাকি তোমার ওখান থেকে? না না, अच्छा আমি এটা স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप ग्रुप पे দিচ্ছি তাহলে। कैटेगरी के अंदर क्या होता है, अगर ये इस क्लाइंट का मैक्सिमम सा प्रोडक्ट लोन है, ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी के अंदर जाता है ना, जैसा कि वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएगा, अच्छा हाँ बुझे गए टीवी बुझे टेलीविजन के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाल सकते हो, ऐसा करके इधर कैटेगरी चूज करता है, ठीक है। समझा। फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, मोबाइल, हाँ कंप्यूटर, हाँ, ठीक है। और डिडक्शन में क्या होता है, प्रोसेसिंग फीस एक लोन के लिए कुछ चार्जेस लगता है, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, लीगल फी, इंश्योरेंस फी, बहुत कुछ चार्जेस लगता है, ठीक है। उसका परसेंटेज इधर सेट होता है। मान लो तुम्हारा 100 रुपया का लोन है, ठीक है, उसके ऊपर तुमने क्या किया, 10% प्रोसेसिंग फीस लगा दिया, तो 100 रुपये के ऊपर 10%, 10 रुपीज, 10 रुपए वो 10 रुपया काट के 90 रुपीज अकाउंट में जाएगा जाएगा। अकाउंट पे, डिसबर्स होगा। और हम्म। लेकिन ईएमआई होगा वो 100 रुपीज के ऊपर ही ईएमआई होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फी पहले ही काट लिया जाता है। हाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग फीस नहीं, जीएसटी फी, लीगल फी भी, इंश्योरेंस भी, जितना भी तुम्हारा डिडक्शन है। चार्जेस है वो सब, हाँ हाँ, और पेनाल्टी में क्या होता है, जीएसटी, हाँ जीएसटी जब भी लेता है वो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर ही जीएसटी लेगा, ठीक है। समझा। जीएसटी जो 18% कैलकुलेट होता है वो प्रोसेसिंग फीस के, मतलब तुम्हारा 10 रुपया आया तो 10 रुपये के ऊपर 18% करो, जो भी आएगा वही तुम्हारा 1.8। जीएसटी होगा, ठीक है। पेनाल्टी में क्या होता है, ग्रेस पीरियड, फाइन परसेंटेज, ये दोनों मैंडेटरी होता है, ठीक है। ग्रेस पीरियड मतलब तुम्हारा आज ईएमआई का डेट था, तुमने नहीं पेमेंट किया, तुमको कितना दिन तक छूट मिलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, उस 5 दिन के बाद तुम्हारा कितना फाइन लगेगा उसका परसेंटेज इधर सेट करता है, समझा। ठीक है। अच्छा इसके बाद डीलर स्कीम, ये प्रोडक्ट लोन के लिए हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई डीलर तो होगा, ठीक है, कौन सा डीलर से, तो उसका ही एंट्री इधर होता है, समझा। और कौन सा ब्रांच के आसपास है वो सब हो जाएगा। प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर में वो जो प्रोडक्ट अब लोगों को बताया ना, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, डाइनिंग टेबल, ওয়াশিং মেশিন, जो ওটা कुछ, ক্যাটাগরাইজ হবে এখান থেকে, हाँ ওটা এখান नहीं থেকে नहीं ক্যাটাগরাইজ হবে। नहीं नहीं, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, कैटेगरी इधर ड्रॉप डाउन में आता है, ठीक है। मान लो कोई कैटेगरी नहीं है ड्रॉप डाउन में, उसके लिए वो प्लस बटन है, उसको क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, शो होगा, देखो क्लिक करो प्लस बटन के ऊपर, कैटेगरी ड्रॉप डाउन होगा ना, কিছু ये এসছে देखो নাকি एक দেখো? पॉपअप आया, ठीक है। इधर से कैटेगरी पुट करके जब सेव करोगे तब ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक है। और उसके नीचे प्रोडक्ट नेम डालोगे, उसका डिटेल्स डालोगे तो सेव कर दोगे, प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये लोन और मास्टर दोनों कंप्लीट हो गए। ब्राउजर के अंदर क्या है, न्यू ब्राउजर ना, বড় बोरोवर, আর सॉरी सॉरी देखा नहीं, बोरोवर, ठीक है। ऐड ए न्यू बोरोवर, उसका डिटेल्स यहाँ से हम लोग देंगे, कौन सा ब्रांच से, ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, मेंबर, गार्जियन नेम, जो फॉर्म फिलअप में हम लोग करते हैं वही चीज है, यहाँ पे इमेज देना है, सारा डिटेल्स यहाँ पे देना है, ठीक है। समझा। पेमेंट मोड क्या है, कैश होगा, चेक होगा, कोई भी বানিয়ে দেখি তো একটা ऐड করলে অসুবিধা নেই তো? टेस्ट बोले বানাবে। और है हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट का, ठीक है, कोई भी कंपनी का जब डेमो देने जाओगे, अगर क्लाइंट ने बाई चांस बोला कि एक एंट्री करके दिखाओ, ठीक है, जो भी डालना है ठीक है, लेकिन हर जगह पे टेस्ट टेस्ट बोल के डालना। कोई भी रियल नाम डाल दोगे ना तो क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा, तो क्लाइंट बोलेगा ये लोन कैसे हो गया। हाँ सही बात है। टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1990 दे रहा हो किसी का, अगस्त का 15, एज आ जाएगा, उसके पास एज कैलकुलेट होके आएगा। मोबाइल नंबर, বুঝে গেছি। এই মোবাইল নাম্বারটা নাও নিতে পারে।
91 দিয়ে নিতে হবে নাকি? না না 91 দিয়ে না, অ্যাকচুয়ালি এই মোবাইল নাম্বারটা অলরেডি মনে হয় একটা মেম্বার আছে, টেস্টিং পারপাসের জন্য আমরা করে রেখেছিলাম। এখানে একটা চেকিং আছে, একটা মোবাইল নাম্বার একবারই থাকবে ডেটাবেসে। চলো এটা নেই কারো কাছে। आधार कार्ड में चेकिंग আছে। हाँ, बहुत सारा क्लाइंट मेरे पास भी आता है, आधार ऑथेंटिकेशन है कि नहीं ये चीज मांगता है, ठीक है। ये चीज बहुत सारा क्या और 90% का क्लाइंट तुमको पूछेगा। एक काम करो, तुम लोगों को लाइव डेमो दिखा देते हैं, ठीक है। শুভঙ্কর দা, हाँ একদম উপরে দেখো ফিল মেম্বার ডিটেলস বাই আধার নাম্বার করা আছে, हाँ ক্লিক করো, একটা আধার নাম্বার দাও, ভ্যালিড দেবে কিন্তু, চাকুসি দেবো, ভ্যালিড ভ্যালিড আধার নাম্বার ডিরেক্ট किसी के पास আমাদের अभी আধার आधार অফিস है, থেকে मेरे पास কিন্তু ফেচ হবে ডেটা। আমার কাছে নেই এখন কার্ড ভাই। कार्ड नहीं, कोई इमेज विमेज किसी के पास है? নেই নেই ইমেজ নেই। नहीं तूफान तुम्हारे কাছে আছে আশেপাশে? 14 আমার তো সব ফাইলে ঢোকানো। यानी ये एक्चुअली वर्क करता है, मतलब ये जैसे एक्चुअली गवर्नमेंट वर्क का। होता है, वो गवर्नमेंट से ही फेच होके आता है। ও ओके আচ্ছা। इसका समझ आधार गया। नंबर तुम डालोगे, सेंड ओटीपी करोगे, तुम्हारा जो आधार के साथ लिंक्ड है जो फोन नंबर, वहां पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इधर डालोगे, ठीक है। ओके डालने के बाद सबमिट करोगे तो तुम्हारा जो भी आधार का नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जो आधार भी का उसको डिटेल यहाँ मिलेगा, पे आ जाएगा। आधार का हाँ। डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होके चला आएगा, और ओके दूसरी एड्रेस बात, फैड्रेस सब कुछ। ये आधार में बैलेंस भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे समझा नहीं। 9040 है, ठीक है 2040 उसका बैलेंस है, और चार्जेस भी लिखा हुआ है, वो 4 रुपए करके। 4 रुपया कटेगा उसका हर एक चेक के लिए, अच्छा 4 रुपए करके कटेगा। कटेगा एक ओके चेक की। और ये क्या है, कॉम कोड क्या है? वो कंपनी का यूनिक सा कोड है, वो डेटाबेस का पार्ट है, उसके अच्छा वो अकॉर्डिंग हम हम चार्जेस लोग का और लेना बैलेंस को देना नहीं फेच है। करते हैं। वो हर एक कंपनी का ना एक यूनिक सा कोड हम लोग जनरेट करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हो गया एडुकेशन, बैचलर डिग्री। यहाँ पे मैं कुछ डाला, इमेज का मैंडेटरी किया हुआ है क्या तूफान? ना स्टार मार्क नहीं मैंने करा नहीं। टेस्ट करंट एड्रेस, पिन कोड हम लोगों को इधर का ही दे रहा है। वैलिड देवे पिन कोड ऑटोमेटिक valid पेज है। হবে কিন্তু স্টেট আর ডিস্ট্রিক্ট। ऑटोमेटिक आ गया स्टेट डिस्ट्रिक्ट। हाँ नॉमिनी नेम, ठीक है। অর্ক নামটা কেটে দাও, শুধু টেস্ট দিয়ে দাও। एज 24 साल लिख रहा हूँ। मेंबरशिप फीस 0। मेंबरशिप फीस क्या होता है ना कि एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे एक मेंबर का फीस लगता है जब वो रजिस्टर करता है। तुम लोग देखना, अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो कि रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, उसके ऊपर तो डॉक्टर का फीस अलग से लगता है ना, तो वही रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे सेट होता है, वो कितना लेगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, जिस बैंक से ऑपरेट होगा, आधार नंबर, पैन नंबर दे के यहाँ पे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे आएगा ऊपर से पॉपअप होके। आईडी प्रूफ कुछ दे सकते हैं, पासपोर्ट है उसका आईडी नंबर देना है, कुछ भी दे रहा है अभी के लिए। हाँ, एड्रेस प्रूफ इस ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, WH01 ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स, ये अभी मैंडेटरी नहीं है, ये दे भी सकते हैं हम लोग। इधर देना पड़ता है, ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए। एम्प्लॉय डिटेल्स मतलब वो मेंबर कौन सा कलेक्टर के अंडर पे जा रहा है, ठीक है, समझा। हम लोगों का जो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, मान लो तुम लोगों ने डेमो दिया, क्लाइंट ने फिलअप करने के लिए बोला, ठीक है, और मैंडेटरी है, तो एक चीज तुमको देना पड़ेगा, बैंक नेम। তোমাকে দা তোমাকে চ্যাটে একটা কালেক্টর কোড দিয়েছি, দেখো ওটা পুট করো তো এখানে। ই করে দেবো, पुट करो, हाँ, বাইরে करो। क्लिक करो। ये कलेक्टर के कोड के अकॉर्डिंग कलेक्टर का नेम उठाता है, ठीक है। जब भी कलेक्टर ज्वाइन होगा, एट फर्स्ट वो तो कंपनी के अंडर में ही जाता है, तो कंपनी को खुद का एक कोड होना चाहिए, ठीक है।
तो ये बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक। ठीक है, अच्छा अभी मैं ये कंफर्म 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 है, करो। सबमिट कर रहा हूँ। ये रहा। ये जो प्रिंट आया ये मेंबर ज्वाइनिंग रिसिप्ट है। ठीक ये है, रहा, मेंबर ने पीडीएफ होके ज्वाइन भी आ किया गया। है, उसका पूरा रिसिप्ट आ गया। ठीक है। कॉल को देखिए ना नीचे। हाँ ये टेस्ट हेड ऑफिस में हुआ है, कितना क्या अमाउंट दे रहा हूँ, मेंबर कोड भी जनरेट हो गया, 0 रुपीज से हो गया, पूरा दिखा रहा है। ठीक है, यूपीआई से अमाउंट पे हुआ है, रिसिप्ट अमाउंट पूरा है, ये प्रिंटेबल भी है। गॉट ठीक इट। है। अच्छा मैं अभी इससे बैक कर रहा हूँ, तो ये गया ब्रांच। अब केवाईसी हम लोग जानते हैं। अपलोड मतलब जो भी मेंबर ज्वाइन हुआ है, मेंबर या कलेक्टर या डीलर, ठीक है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो इधर से अपलोड करेगा। अब ये अपलोड करने के बाद अप्रूव पे जाएगा यहाँ पे। केवाईसी अपलोड है, जाओ एक बार সার্চ করো, শোতে ক্লিক করো, কিছু করতে হবে না, ऑल ब्रांच तक ना शो करो जस्ट। ये देखो अभी उसने बनाया है, ठीक है, यहाँ से अपलोड होगा। अपलोड पे क्लिक करो। इसका पूरा कितना कितना डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, समझा। इतना डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करना है। उसके बाद ये जाएगा अप्रूवल के लिए, जो केवाईसी अप्रूवल में है। ये रहा अप्रूवल, वहाँ पे जो अपलोड करूंगा यहाँ पे आ जाएगा। समझा। ये रहा शो डॉक्यूमेंट्स करके आएगा। ठीक है, सिविल चेक, सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, कस्टमर नेम, फोन नंबर, पैन नंबर, सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। सिविल का भी चार्जेस लगता है। हाँ ये देखो सिविल चार्जेस 35 कॉइन करके लगता है। उसका वॉलेट में कितना है ये कंपनी को दिखाएगा, कस्टमर को नहीं। ठीक है, বড় বড় লিস্ট কোন কোন सा है तूफान, केवल लिस्ट नहीं ना এটা ব্রাঞ্চটা দেখানো তো যেটা। সিলেক্ট করো। আচ্ছা আরে উপরে ব্রাঞ্চটা সিলেক্ট করতে বললাম তোমায়। ओहो सॉरी, ऑल ब्रांच मच। ये देखो अभी मैं बनाया, ये आ गया। समझा। अच्छा इसके बाद डिटेल्स रिपोर्ट क्या है, मेरा सिविल स्कोर क्या है, मैंने कितना लोन दिया, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बोरोवर को कोई कोई बोरोवर फ्रॉड या ये होता है तो उसको ब्लॉक किया जाता है व अनब्लॉक किया जाता है, उसका यहाँ से हो जाता है। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँ तो ब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक करूँ तो अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, समझा। अब कलेक्टर क्या है तूफान, ये थोड़ा समझा दो उसको। न्यू कलेक्टर कलेक्टर मतलब जो मेंबर के पास जाएगा कलेक्शन के लिए, लोन कलेक्ट करने आता है ना, हम्म। ऐसे वो वही है होता लोन। है कलेक्टर। तो कलेक्टर का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, न्यू कलेक्टर ऐसे करके उसका भी एक पूरा डिटेल्स जाएगा। समझा। ठीक है, वो कलेक्टर का पोर्टल ये है। ठीक है, कलेक्टर कलेक्टर है, कलेक्टर का डाउनलाइन है, मतलब मैं एक कलेक्टर हूँ। मैं अगर किसी 2 3 4 बंदे को अगर ज्वाइन कराता हूँ तो मेरा पूरा डाउनलाइन दिखेगा कि मेरे अंडर कौन कौन सा कलेक्टर है, मैंने समझा। किसको किसको ज्वाइन करवाया है। ठीक है, वो ट्री के आकार में भी दिखता है, ट्री में भी वो दिखता है, जैसा ट्री का होता है ना, लाइन ड्रॉ करके उस तरीके से भी दिख जाता है। गॉट इट। कलेक्टर ब्लॉक अनब्लॉक सेम है उसकी तरह। ठीक है, हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से। आई कार्ड, कलेक्टर का जो आई कार्ड है हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग को ये नया सॉफ्टवेयर डेटा नहीं है, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कलेक्टर प्रमोशन डिमोशन। কালেক্টর প্রমোশন হলো কি ডিমোশন হলো এটা? কোন কালেক্টর যদি র্যাঙ্ক আপ হয় হ্যাঁ তো এখান থেকে র্যাঙ্ক আপ হবে, একটা প্রমোশন হবে।
ঠিক আছে। तो ये क्लाइंट वाला कलेक्टर वाला जगह गया। अब लोन वाला, ठीक है, जो समझाने वाले थे क्या क्या लोन होता है। जैसे पर्सनल लोन होता है, ऑल ब्रांचेस সার্চ। আচ্ছা, তুফান এটা ওদেরকে একটু বোঝাও লোনের ব্যাপারটা। क्रिएट न्यू करो। जैसे एक लोन क्रिएट करें, ये पर्सनल लोन के लिए, ठीक है। ये पर्सनल लोन का पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि प्रोडक्ट से ऊपर में तो बोरोवर जब सिलेक्ट करेगा, ये जो पर्सनल इन्फो है ये ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा जो अच्छा। प्रीवियस में डाला था, ठीक है। एक तो नीचे जाओ, स्कीम तुमको चूज करना पड़ेगा, जो स्कीम तुम लोगों ने बनाया था। स्कीम चूज करोगे, उसका टर्म चूज करो, कितना दिन के लिए चलेगा, मोड में क्या आएगा, मंथली आएगा या डेली आएगा, किस बेसिस पे वो ईएमआई पे करेगा, ठीक है। वो स्कीम में सेट होता है, उससे ऑटो फेच होगा। एजेंट का कोड, कलेक्टर का कोड, दो कोड, इसलिए वो ये जो लोन हो रहा है वो कौन सा एजेंट के अंदर जा रहा है, कौन सा कलेक्टर के अंदर, और कलेक्टर कोड जो डाला हुआ है वो है कौन सा कलेक्टर जाएगा कलेक्ट करने के लिए उस ईएमआई, ठीक है। जब लोन अमाउंट डालोगे इधर ऑटोमेटिक ईएमआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा। সিলেক্ট স্কিমে একবার ক্লিক করো শঙ্করদা। কোথায় সিলেক্ট স্কিম ওপরে, ওই তো প্রোডাক্ট বলে কিছু এসছে ড্রপ डाउन টার্ন টার্ন বল না, কিচ্ছু নেই। हाँ, क्योंकि ये नहीं आया उसके ड्रॉप डाउन में, क्योंकि पर्सनल लोन के लिए कोई स्कीम बना ही नहीं है अभी तक, प्रोडक्ट लोन के लिए बनाया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लोन के रिक्वेजिशन पेज में ही वो शो होगा, समझा। ठीक है। जैसा स्कीम डेवलप किया हुआ रहेगा वहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन पे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। गारंटर का डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, जो लोन के लिए गारंटर लगता है ना, डायरेक्ट यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे तो उसका अमाउंट वगैरह क्या है, इसका सब कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये गया पर्सनल लोन। ये प्रोडक्ट लोन के लिए क्या होता है, ऑल ब्रांच, यहाँ पे डेटा आएगा। ये डैशबोर्ड है टेक्निकली प्रोडक्ट लोन का। इसका भी ब्रांच सिलेक्ट करना है, लोन का ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, सिलेक्ट बोरोवर क्या है, नाम उसका देना पड़ेगा। अब लोन का डिटेल्स भरना पड़ेगा, कंपनी क्या कैटेगरी, फर्नीचर है, जैसे तुमने कोई बाइक खरीदा है उसका लोन ले लो, तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आएगा। इधर क्या होता है, एक कैटेगरी के अंडर में कैटेगरी और सिविल स्कोर, ये दो फिल्टर होके स्कीम का नेम आता है, स्कीम का नेम, प्रोडक्ट का नेम, ये सब कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद प्रोडक्ट ऊपर चलो, हाँ। प्रोडक्ट लोनটা বুঝিয়ে দিই একবার। नीचे जाओ, একটু नीचे जाओ, এখানটা কিছু लोन डिटेल्स है बस। इधर तक ना क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, वो मार्जिन अमाउंट जो भी होगा वो डालेगा, लोन अमाउंट उसके ऊपर बेस कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। ईएमआई अमाउंट भी कैलकुलेट होगा ऊपर में, टर्म आरओआई जब चूज करोगे तो डीपी अमाउंट मतलब डाउन पेमेंट कितना करोगे। मान लो तुम्हारा एक 10,000 का किसी भी प्रोडक्ट का लोन लिया, ठीक है, उसका ईएमआई आया 1,000 करके, तुम डाउन पेमेंट करने जा रहे हो 2, ठीक है। अगर 2 डाउन पेमेंट करोगे तो तुमको कितना अभी पे करना है, 2,000 पे करना है, क्योंकि तुम्हारा 1,000 करके ईएमआई है ना, तो तुम 2 ईएमआई तो पहले ही दे रहे हो, तो 2,000 तुम पेमेंट करोगे और रेस्ट ऑफ द 8,000 के ऊपर 8,000 के ऊपर तुम्हारा लोन चलेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा लोन अमाउंट के ऊपर ही लगेगा। अच्छा, ठीक है, 2 ईएमआई तुम अभी पेमेंट कर रहे हो और बाकी जो 8 ईएमआई है वो कब कौन सी डेट से वो स्टार्ट होगा ये तुम चूज करोगे। अच्छा, ठीक है। और नीचे में जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, ये तो प्रोडक्ट का ब्रांड, मॉडल, वेरिएंट, वो व्हाटएवर जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है वो सब कुछ चूज करते हो। प्रोडक्ट का इमेज भी चूज करो, बिल का इमेज भी चूज करो, और प्राइसिंग की
जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसको लगेगा, ठीक है, वो इधर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आएगा जो स्कीम में सेट किया गए थे। नीचे जाओ सोऊंगा तो एजेंट कोड सब कुछ कैलकुलेट होके, ठीक है, अभी कंज्यूमर को या कस्टमर को कौन कितना अमाउंट पे करना है, दो डाउन पेमेंट पकड़ के सब कुछ प्रोसेसिंग फीस सब कुछ लेस करके कितना अभी उनको इंस्टेंट पे करना है, वो इधर दिखेगा कंज्यूमर पेज पे। समझा। अच्छा, ये गया प्रोडक्ट लोन, पर्सनल लोन, दोनों दो लोन क्लियर है। हाँ। अब प्रॉपर्टी लोन पे आते हैं। प्रॉपर्टी लोन अगर किसी को बाद में कोई भी सेक्शन पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बस एक स्क्रीनशॉट उठाओ और वो ग्रुप में डाल दो। না আমি রেকর্ড করছি এটা পুরো মিটটা। और को ঠিক প্রপারলি আছে, দেখে বাট নাও, কোনো কারণ আমার টাইম প্রচুর আছে। কোনো তোমাদেরকে রেকর্ডের বাইরেও যদি তোমরা টেস্ট করতে গিয়ে কোথাও কোনো প্রবলেম ফেস করো, হ্যাঁ একটা স্ক্রিনশট তুলবে, সেটা তুলে গ্রুপে পোস্ট করে দেবে, আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো। ঠিক আছে ঠিক। ঠিক আছে, এবার ঠিক হতে আছে। পারে কি কখনো তোমরা এমন টাইমে বললে আমি হয়তো মিটিং এ আছি অফিসে, ঠিক আছে, কোনো তো হ্যাঁ, একটু সেই কারণে ডিলে হতে পারে। হুম হুম, হুম, বাট আমি যদি ফ্রি থাকি তো আমি সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। ठीक। हाँ बट तुम लोगों प्रॉपर्टी को लोन में प्रॉपर्टी लोन में भी पर्सनल इन्फो तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा जब मेंबर चूज करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी डिटेल से जाओ, हाँ प्रॉपर्टी इन्फो, একটু স্ক্রল করো, নিচেই রয়েছে प्रॉपर्टी डिटेल्स, राइट। तो हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी का सारा जितना भी सब कुछ होगा, उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, उसके ऊपर उसका होम लोन में क्या होता है, पूरा 100% तो सैंक्शन नहीं होता, 90% सैंक्शन होता है या फिर 80% होता है, रेस्ट ऑफ द तुमको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, वो तुम्हारा खुद का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का पूरा कॉस्ट कितना है, उसका बिल्डअप एरिया कितना है, उसका स्क्वायर फीट कितना है, सब कुछ इधर डालोगे। उसके बाद उसका वैल्यूएशन चेक फेक सब कुछ चूज करना पड़ता है। उसके बाद एलटीवी परसेंटेज जो होता है, ठीक है, तुम्हारा मान लो प्रॉपर्टी का लोन आया 1 लाख, 1 लाख के ऊपर तुम उसको लोन दोगे 90% तक, तो 1 लाख के ऊपर 90% होके जितना होगा, ये 90 इधर तुम डालोगे, ठीक है, एलटीवी के अंदर 90 डालोगे या 80 या 70 वॉट एवर, उसके उस परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट होकर तुम्हारा एलिजिबल अमाउंट आएगा, ठीक है। समझा। और स्कीम तो एज इट इज सेम, स्कीम चूज करोगे, उसका टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चूज करो डालोगे तो ईएमआई अमाउंट ऑटोमेटिकली आएगा, लोन अमाउंट भी तुमको डालेगा। मान लो क्या होता है कि तुम्हारा 1 लाख के ऊपर 90% जो हुआ, ठीक है, तुम उस एक कस्टमर को 90% तक लोन दोगे, ठीक है। 90% के ऊपर तुम्हारा 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। 90,000, सही बोला ना मैं, हाँ 90,000 90,000। 90। हाँ तो एलिजिबल अमाउंट हुआ 90,000। आप कस्टमर ने बोला कि मेरे को 90,000 नहीं चाहिए, मेरे को 80,000 चाहिए, ठीक है, तो लोन अमाउंट पे 80,000 डालोगे। अगर कस्टमर को पूरा ही चाहिए तो लोन अमाउंट पे 90,000 ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर ईएमआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा। समझा। अच्छा इसके बाद है डिलीट लोन कोई रिक्वेस्ट है। डिलीट लोन रिक्वेजिशन पे जो भी लोन बनाया है, अगर उसको गलती से हो गया तो कुछ भी हो गया, उसको डिलीट करने के लिए ये फेस है। समझा। अच्छा अच्छा ये गया। अब लोन अप्रूवल में जाएंगे, ठीक है। सिंगल लोन ब्रांच के हिसाब से देखते हैं, ऑल ब्रांच, लोन टाइप प्रॉपर्टी लोन सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का लोन का डिटेल सब मिल जाएगा, वो हम लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में। ये देखो একটু পুরোনো রেট দাও, একটু আসবে ডেটা মনে হচ্ছে। কত মাসে কত তারিখে ডেট দেবো? 1 বছর 2 বছর 3 বছর যত খুশি দিয়ে দাও, 2000 সাল ফাল দিয়ে দাও, আমরা তাই দিয়েই সার্চ করি। হবে না, ওইভাবে হবে না, 2023 চুজ করলে ডেটটা তো চুজ করবে। ও আচ্ছা
23 আগস্টের 1 তারিখ দিলাম। এবার চেঞ্জ হলো দেখো, নেই কিছু, সব অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। ठीक है, यहाँ से लोन अप्रूव होता है, ठीक है। ठीक। अच्छा ये जो एक्शन कलम है ना, इसके अंदर अप्रूव का एक बटन आता है, वहां से क्लिक करने पे वो पूरा लोन का डिटेल्स दिखता है, ठीक है। और नीचे में अप्रूव का बटन रहता है, अप्रूव और रिजेक्ट। रिजेक्ट रहेगा तो वो लोन डिलीट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है रख के, और अप्रूव करेगा तो अप्रूव हो जाएगा। समझो। अच्छा, यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब लोन का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये देखो लोन का डॉक्यूमेंट है, शिवराज करके किसी का है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। उसका फॉर्म, टर्म, एनओसी, एप्लीकेशन फॉर्म, टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट ड्यू होगा तो उसका, और पेमेंट शेड्यूल, ठीक है। ईएमआई का पूरा स्ट्रक्चर आता है, उसको कौन से डेट पे कितना ईएमआई पे करना है, उसका प्रिंसिपल कितना जा रहा है, उसका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, पूरा डिटेल्स आता है। একটা করে দেখো না, পেমেন্ট শিডিউলে ক্লিক করো, একটা করে দেখাও কোনটা? পেমেন্ট শিডিউল। কোথায়? টার্মের পাশেরটাই তো, হ্যাঁ ওই তো, ওইটা অন করো, হ্যাঁ প্রিন্ট করো। डिलीट, ये पूरा देखो डिटेल्स आ गया। उसका, ये ईएमआई के अंदर कितना प्रिंसिपल जा रहा है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, सब कुछ आएगा। इंटरेस्ट शायद इधर नहीं दिखाया, ये पूरा ही दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद है कलेक्शन शीट प्रिंट जो है, ठीक है, ये बेसिकली कलेक्टर लोगों के लिए। एक कलेक्टर तो दिन में एक तो और ईएमआई कलेक्ट नहीं करेगा, 10 या 15 जो भी कलेक्शन होगा उसका पूरा शीट ये कंपनी को दिखेगा, ठीक है। आज कौन सा कलेक्टर कितना ईएमआई लिया है, कौन सा लोन का कितना ईएमआई लिया है, पूरा शीट इधर दिखेगा। अच्छा, ये गया। एनओसी रिपोर्ट, एनओसी तुम दोनों को पता है ना क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ, ये लोन क्लोज होने के बाद ही प्रिंट होगा, पहले प्रिंट नहीं होगा। मान लो मेरा पहचान वाला है, मैं प्रिंट करके लेके चला गया घर, मेरा लोन अभी तक क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए जब लोन क्लोज होगा उसके बाद ही ये लोन का एनओसी निकलेगा। तब तो इशू ही तो तभी होता है ना, उसके बाद ही तो। हाँ, नहीं मान लो मेरा पहचान वाला है इस कंपनी में, ठीक है। मेरा लोन चल रहा है, अगर मेरे को क्लोज होने का चेकिंग नहीं लगा था तो मैं एनओसी प्रिंट करवा देता उससे। अब उसके अगेंस्ट में मैं केस कर देता कंपनी से कि मैंने दे दिया, कंपनी ने मेरे को इशू कर दिया एनओसी, तो फिर मैं ईएमआई क्यों भरूं। अच्छा, इसीलिए चेकिंग डला हुआ है, लोन क्लोज होगा उसके बाद ही वो प्रिंट होगा, नहीं तो समझो। नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, ये है। लोन डिसबर्समेंट। हाँ, ऑल ब्रांच। দেখো আছে কিনা, কেননা এরা একই দিনেই ডিসবার্সমেন্ট করিয়ে দেয়, কেননা প্রোডাক্ট লোন তো इंस्टेंट হয়। हाँ, ये दो आ गया। ये जो भी आ रहा है इसका अप्रूव स्टेटस देखो, पेड है, ये डिसबर्स हो चुका है। इसको मैं चाहूँ गलती से अगर पेड हो गया है, इसको मैं रिवार्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन कब तक, अगर इसका कोई ईएमआई पेमेंट नहीं हुआ है तो। अच्छा, ईएमआई अगर इसने कोई भी डाल दिया तो मैं उसको रिवार्ड नहीं कर सकता हूँ। और ये जो छोटा सा प्रिंट का बटन दिख रहा है ना, सेव का बटन एक्शन में, इसका मतलब है इस लोन का जो सब कुछ प्रोसेसिंग फीस काट के कितना पेड हुआ है, ठीक है, उसका एक रिसिप्ट है, একটা प्रिंट करो। हाँ, ये देखो, ये रिसिप्ट आ गया, ठीक है। 5,300 रुपये का आ गया। तो ये चीज है लोन डिसबर्समेंट। अब ईएमआई पेमेंट का डिटेल्स है। इसका नाम है
इसका इधर स्लो पूरा डिटेल्स दिखेगा, उसका टोटल पेएबल अमाउंट कितना था, ठीक है, टोटल पेड कितना कितना हुआ है अभी तक, कितना ड्यू है, ठीक है। लेट फाइन कैलकुलेट होगा या नहीं कैलकुलेट होगा वो यस नो करेगा। अगर मान लो तुम्हारा ईएमआई 1000 का है, तुमने अभी 900 दिया, तो तुम्हारा कोई ईएमआई तो फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो 900 तुम्हारा एडवांस पे चला जाएगा, ठीक है। तब उधर दिखाएगा कि एडवांस अमाउंट बोल के 900 दिखाएगा। जब तुम रेस्ट ऑफ द 100 जब किसी दिन आगे पे करोगे, तब एक ईएमआई फुलफिल हो जाएगा, वो एक ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। और पेमेंट नंबर जो आता है वो कितना टाइम पेमेंट करने आ रहा है, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम पेमेंट करेगा तो 1 दिखाएगा, जब सेकेंड टाइम करेगा तब 2 दिखाएगा, ऐसा। समझा। ये पेमेंट ईएमआई का क्या क्या है, उसका डेट है, लेट फाइन कितना है, सब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइड में पेड ईएमआई बोल के आ रहा है, ये 3 ईएमआई उसने पेड किया है, ठीक है। और न्यू ईएमआई जो दिखा रहा है वो अपकमिंग ईएमआई है, कौन सा डेट पे कितना ईएमआई पेमेंट करना है। अच्छा, नॉन ईएमआई पेमेंट। नॉन ईएमआई पेमेंट बेसिकली पूरा कोई भी लोन के लिए नहीं होता, सिर्फ गोल्ड लोन के लिए ही होता है, ठीक है। गोल्ड लोन का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? नहीं। गोल्ड लोन बाद में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। गोल्ड लोन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसका कोई ईएमआई नहीं होता, ठीक है। वो जब इच्छा जितना तब पैसा आके दे सकते हैं। हाँ, जितना भी चाहे वो दे सकता है। गोल्ड लोन में पहले उसका इंटरेस्ट कटेगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो रहता है तो वो प्रिंसिपल से कटेगा, उसके लिए नॉन ईएमआई का कैलकुलेशन होगा। अच्छा, नो लोन सेटलमेंट। मान लो तुम्हारा 3 या 4 ईएमआई पेंडिंग है, तुम एक ही बार में क्लोज कर रहे हो, जैसे कि फोरक्लोज बोलता है ना, लोन को फोरक्लोज करते हैं, ये यहाँ से ही सेटलमेंट होता है, फोरक्लोज हो जाता है। समझा। अच्छा, ये क्या है ईएमआई पेमेंट। अच्छा, अभी ये 5 कैटेगरी में से तुम लोगों का कुछ कंफ्यूजन है? लोन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट टू एंड अभी तक जितना दिखाया है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एज सच अभी तक तो नहीं है। नहीं है, होना भी नहीं। नहीं, अभी देखो होगा भी नहीं जब तक तुम लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे, हाँ उसके वही। बाद आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे तूफान तुमको बता रहा है ना, ऐसे क्लाइंट को तुमको समझाना है, ठीक है। अच्छा। क्लाइंट को क्लाइंट इंग्लिश छोटे इतना छोटे नहीं चीज समझना पड़ेगा। क्लाइंट को पता है, क्योंकि उन लोगों का नॉलेज है, इसीलिए वो इस फील्ड में है, ठीक है। उसको छोटा छोटा चीज उसको पता है। अब यही छोटा छोटा चीज जो उनको पता है, यहाँ पे यह दिख जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में बताओगे तभी जाके वो क्लाइंट हमारे हाथ में आएगा। समझा। अच्छा, यहाँ तक कंफ्यूजन कोई नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज ऑलरेडी दिखा दिया, इसीलिए मैं पूछ रहा था। अब अकाउंट्स में क्या है? কনফিউশন আসবে, দাঁড়াও, পরে নিজে হাতে যখন করবে তখন কনফিউশনটা আসবে, এক্ষুনি थोड़ी ना আসবে। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स का नॉलेज किसी को है? अकाउंट्स मतलब किस हिसाब का अकाउंट्स, वो समझा नहीं। मतलब क्या क्या लेजर होता है, नहीं होता है, प्रॉपर अकाउंट्स। कोई भी 19 में कॉमर्स पढ़ाया था, बैकग्राउंड से उसके है क्या? बाद भूल गया कोई था। भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है इधर? था কমার্স 19 ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তো আছি ভাই, বাট ভুলে গেছি সব। ঠিক আছে, কমার্সে লেজার করেছো, ডেবিট হ্যাঁ ক্রেডিট হ্যাঁ লেজার, হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা হ্যাঁ। কোন লেজারে যাবে, এখানে লেজার গুলো বানাতে হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা। লোন ইন্টারেস্ট বাই ডিফল্ট যেগুলো সিস্টেম লেখা আছে ওগুলো কিছু ঘাঁটতে কেউ পারবে না কোনোদিন, ঠিক আছে। ওগুলো আমরা ফিক্সড করে রেখেছি। যেমন লোনের প্রিন্সিপাল যখন আসছে সেটার লেজার, লোনের ইন্টারেস্ট আসছে সেটার লেজার, লোনের লেট ফাইন ঢুকছে সেটার লেজার, এগুলো ইভেন কোন কোন মেন প্যারেন্ট গ্রুপেতে যায়, অ্যাসেটে কোনটা যায়, লাইবিলিটিতে কোনটা যায়, কোনটা প্রফিট অ্যান্ড লসে দেখাবে, কোনটা দেখাবে না, কোনটা ইনডিরেক্ট ইনকামে যাবে, কোনটা ইনডিরেক্ট এক্সপেন্সেসে যাবে, এগুলো সবকিছু এখান দিয়ে সেট করতে হয়, ঠিক আছে। নিচে যাও, নেক্সট মেনুতে যাও, তোমাকে তো अकाउंट्स ग्रुप मास्टर।
यहाँ से वो एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस ये सब कुछ सेट होता है पड़े मेनू थे पेमेंट वाउचर एंट्री। पेमेंट वाउचर रिसीव वाउचर क्या होता है बेसिकली अगर किसी को पेमेंट करना है मान लो तुम्हारा एक कंपनी है तुम्हारा कंपनी में कोई इलेक्ट्रिशियन आया कुछ काम करने के लिए ठीक है उसको तो तुमने कुछ पेमेंट किया हाँ उसका तो रिकॉर्ड डेटाबेस में होना चाहिए नहीं तो बैलेंस शीट में तो गड़बड़ी आ जाएगा ठीक है तब तुमने अगर पेमेंट किया तो तुम पेमेंट वाउचर इशू कर दो उसके नाम पे ठीक है अच्छा इलेक्ट्रिकल या अदर एक्सपेंसेस बोल के एक लेजर बना दो उसके अंदर में तुम पेमेंट किया हो ऐसा वाउचर कर दो किसमें किया कैश में किया या बैंक में किया वो चूज कर दो लेजर चूज कर दो कम हो जाएगा पेमेंट वाउचर होगा रिसीव वाउचर एज इट इज सेम तुमको कहीं ये लोन छोड़ के किसी जगह से तुम्हारा पैसा आ रहा है रिसीव कर रहे हो पैसा मान लो कोई पेमेंट वाउचर इशू किया था कुछ एक्सपेंसेस मान लो कोई कॉफी वगैरह कुछ खरीदे हो ठीक है उसको रिटर्न किया तो उसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो तो रिटर्न आएगा तुम्हारे पास वो कैसे तुम लोगे तो रिसीव वाउचर काट दो उसके अगेंस्ट में एक ठीक है जर्नल एंट्री भी उस तरीके से ही होता है जर्नल एंट्री और कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री ठीक है और बैंक डिपॉजिट एंट्री जो है मेनू में एक है बैंक डिपॉजिट एंट्री मतलब तुमने जो पहले एकदम फास्ट में जो बैंक सेट किए थे बैंक मास्टर पे बोला था वही बैंक पे तुम्हारा बैंक में अगर मान लो तुम बैंक में जाके कुछ 1000 2000 कैश डिपॉजिट किए हो ठीक है तो इधर से एक एंट्री करो तो क्या होगा तुम्हारा बैलेंस शीट एक्यूरेट आएगा समझा नहीं तो कभी भी तुम्हारा रियल बैंक के साथ इधर का बैलेंस मैच नहीं होगा समझा अच्छा कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री क्या है एज इट इज তোমার পেমেন্ট ভাউচার রিসিভ ভাউচারের মতনই কন্ট্রা ভাউচারের একটা এন্ট্রি হয় बैंक विड्रॉल एंट्री विड्रॉल एंट्री सेम एज इट इज जैसे डिपॉजिट किया मान लो तुमने तुम्हारा अकाउंट से कैश विड्रॉल किया तो इधर भी एक एंट्री डाल लो बाकी सब कुछ रिपोर्ट है जर्नल रिपोर्ट लेजर रिपोर्ट इंडिविजुअल लेजर का ट्रायल बैलेंस का ठीक है ये तुम ऊपर से चला जाओगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उन लोगों को पता है ट्रायल व्हाट इज ट्रायल बैलेंस व्हाट इज लेजर रिपोर्ट ये उन लोगों को पता है ऑलरेडी बस हम लोगों के इधर आता है ये रिपोर्ट है बस दिखा दो हो जाएगा अकाउंट से मेनूटा खोला है बस फोन कर दो हाँ नीचे जाओ कैश बुक बैंक बुक का जो है कैश बुक मतलब तुम्हारा कितना कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है और बैंक बुक मतलब कितना बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है तुम्हारा ठीक है और डे बुक जो है वो कैश बैंक मिला के दोनों डेली एक दिन का क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब कुछ दिखेगा ठीक और उसके बाद तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट है अच्छा ट्रायल बैलेंस और लेजर रिपोर्ट इन दोनों को समझा दो এজ ইট ওটা অ্যাকাউন্টসেরই লেজার রিপোর্ট ওই যে অতগুলো যে লেজার বানিয়েছে ওই প্রত্যেকটা লেজারের কত কি হয়েছে মানে ধরো কোনো ইএমআই নিয়েছে সেটা দুটো পার্ট থাকে একটা ইএমআই এর একটা প্রিন্সিপাল একটা ইন্টারেস্ট ঠিক আছে দুটো দু রকম লেজারে ঢোকে একটা লোনের প্রিন্সিপালে ঢোকে একটা লোনের ইন্টারেস্টে ঢোকে তো তুমি যখন লেজার রিপোর্ট দেখবে না ওখানে ওই লোন প্রিন্সিপাল লেজারটা চুজ করলে তুমি তার দেখতে পাবে তুমি একবার খোলো লেজার রিপোর্টটা একবার খোলো চুজ করো একটা লেজার এটা ওদের অ্যাকাউন্ট তুমি চুজ করলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চুজ করলে এটা লোন বলে সার্চ করো বা প্রিন্সিপাল বলে লেখো প্রিন্সিপাল এটা चूज करो लोन प्रिंसिपल ये है कि इस डेट रेंज के अंदर ठीक है लोन का कितना प्रिंसिपल रिसीव हुआ है वो दिखेगा ওদের আলাদা লেজার বানানো আছে বুঝতে পারলে এখন ডেটা ওই জন্য দেখাবে না আচ্ছা ওরা কাস্টমাইজ করেছে তো প্রজেক্টটা কাস্টমাইজেশনে চেঞ্জেস আছে ওদের কিছু পার্টিকুলার ফিক্সড লেজার আছে
আচ্ছা আচ্ছা যেগুলো দিয়ে ওরা, ওই যে বললাম সিস্টেম লেজার, বাইরেও তুমি লেজার বানাতে পারো, তো ওরা বানিয়েছিল, ওরা ওই লেজারের সাথে কানেক্ট করিয়েছে, ওই জন্য এই লোন প্রিন্সিপালে কোনো ডেটা তোমার দেখাবে না। আর ট্রায়াল ব্যালেন্স সেম? ট্রায়াল ব্যালেন্স একই, অ্যাকাউন্টসেরই আর একটা রিপোর্ট। আচ্ছা আর প্রফিট অ্যান্ড লস, ব্যালেন্স শিট সবই একই। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हाँ, चार्जेस चेक एक ही है। क्लियर का मतलब क्या है, मान लो कोई ईएमआई चेक में लिया, ठीक हम्म है, या कोई डिसबर्समेंट चेक में हुआ, उसका एक क्लियरेंस की जरूरत होता है कि वो चेक सही है या गलत है, हम्म उसके लिए ये चेक क्लियरेंस सेक्शन है। गॉट इट। लोन पेमेंट के लिए है ब्रांच, चेक नंबर से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये अकाउंट्स का पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट में लोन अकाउंट लेजर जो है, ठीक है, मतलब तुम्हारा लोन का लेजर है, ठीक है, लोन का, एक लोन का कितना डिसबर्समेंट हुआ है, कितना ईएमआई आया है, कितना प्रिंसिपल है, पूरा ए टू जेड एक रिपोर्ट दिख जाएगा। ये रहा। ये देखो कितना डिसबर्समेंट हुआ है, कितना ईएमआई गया है, डिसबर्समेंट लोन अमाउंट ऊपर दिखेगा, ठीक है, उसने ऑफ किया है, ये रहा वो लोन दिख रहा है 13,500 दिख रहा है, वो तुम्हारा डिसबर्स हुआ है, और नीचे में वो कितना बार कितना अमाउंट पे किया है। समझा। ये लोन अकाउंट लेजर नॉन ईएमआई जो है वो गोल्ड लोन के लिए है, ठीक है। अच्छा इसके बाद लोन लोन रिक्विजिशन रिपोर्ट जो है वो कितना लोन किया है, रिक्विजिशन किया है, वो दिखेगा। लोन अप्रूवल रिपोर्ट में कितना लोन उसने अप्रूव किया है वो दिखेगा। लोन डिसबर्समेंट रिपोर्ट में जो भी लोन डिसबर्स हुआ है डेट रेंज के अंदर वो दिखेगा। कितने लोगों का ड्यू है ये दिखेगा। लोन ड्यू रिपोर्ट कि कौन सा लोन का कितना ड्यू है, ठीक है। ओवर ड्यू मतलब उसका कितना ओवर ड्यू चल रहा है, मतलब 4-5 महीने का बाकी है क्या? 4-5 महीने का जो बाकी है हाँ। वो दिखेगा। आउटस्टैंडिंग पे तो कौन सा लोन का कितना आउटस्टैंडिंग है अभी तक वो रिपोर्ट दिखेगा। ईएमआई कलेक्शन रिपोर्ट में वो एक लोन का कितना पैसा आया कितना वापस? पैसा आया है, कितना ईएमआई कलेक्ट हुआ है अभी तक, कितना ईएमआई है, पेमेंट हाँ, किया है, वो दिखेगा। नॉन ईएमआई गोल्ड के नॉन लिए। ईएमआई तो एज इट इज गोल्ड लोन के लिए वो है, ठीक है। ठीक। और ऐप सेक्शन के जो अंदर है, ऐप यूजर क्रिएशन जो है, वो ऐप जब बनाएगा एंड्रॉयड ऐप या आईओएस ऐप, वही ऐप अच्छा हाँ, लॉगिन इन जो लोगों का अच्छी करेगा, बात है, ये लोग ना सॉफ्टवेयर के साथ साथ कभी कोई लोगों का ऐप का भी रिक्वायरमेंट रहता है, सेम चीज का ऐप, क्योंकि अभी ऐप के अलावा कुछ ज्यादा काम होता नहीं। बेसिकली ऐप जो होता है वो हाँ। लेता ही है कलेक्टर ऐप, ठीक है। दो तरीके का ऐप होता है, एक कलेक्टर ऐप, एक मेंबर ऐप। मेंबर ऐप ठीक है। जो है जो लोग लोन ले रहा है उनके लिए, वो उसमें उसका डिटेल्स दिखेगा, मेरा कितना बार पेमेंट हुआ है, कितना ईएमआई मैंने दिया है, ये सब। और कलेक्टर ऐप जो लोग होता है जो कलेक्शन के लिए जाता है, उस ऐप के थ्रू वो पेमेंट लेता है, पेमेंट का एंट्री करता है, ठीक है। समझा। जो भी ऐप के थ्रू एंट्री होगा वो सॉफ्टवेयर में आएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। उसके लिए नीचे में अप्रूवल का सेक्शन है, ठीक है। शोंगो दा एक बार ऐप सेक्शन में मेनूटा जस्ट खोलो, ये देखो मेंबर ज्वाइनिंग अप्रूव जो है, मेंबर जब ज्वाइन करेगा ऐप से, कलेक्टर ऐप से, तब यहाँ पे अप्रूवल के लिए आएगा, अगर अप्रूव हुआ तो वो फाइनली मेंबर बनेगा, ठीक है। ठीक है। कलेक्टर मान लो कोई भी कलेक्टर किसी कलेक्टर को ज्वाइन करवा रहा है उसका ऐप के थ्रू, तो इधर अप्रूवल के लिए आएगा। एज इट इज सेम लोन ईएमआई का, जब भी वो ईएमआई पेमेंट करेगा इधर अप्रूवल के लिए आएगा। नॉन ईएमआई का एज इट इज सेम। और जो कलेक्शन रिपोर्ट है ऐप के थ्रू कितना कलेक्शन हुआ है वो दिखेगा इधर। समझा। अच्छा और ऐप यूजर क्रिएशन जो है, जो मैं बोल रहा था, कलेक्टर ऐप में जो भी कलेक्टर लॉगिन करेगा उसका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से बनता है, और एक ऐप में जितना भी मेनू है, कौन सा मेनू परमिशन देगा वह इधर से ही सेट होता है। मतलब आपको अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ से होगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। ऐप में कोई भी कलेक्टर को
हर एक कलेक्टर को तुम्हें सब मेनू नहीं दिखा सकते हो। तो किसी गिने चुने रैंक वाइज किसी कलेक्टर को मैं ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, ये इधर से सेट होता है, परमिशन भी देता है। समझा। अच्छा, ऐप वाला पूरा काम खत्म हो गया, HR है। कंटिन्यू करो শুভঙ্করদা। আচ্ছা, HRM ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কি কি এগুলো কি আর কি অ্যাক্সেস আছে ওগুলো দেখা যায়, যেরকম ম্যানেজমেন্ট এইচআরএম বলে দিচ্ছি আমি। এইচআরএম डिपार्टमेंट যেটা রয়েছে, ঠিক আছে, एचआरएम मतलब जो भी एम्प्लॉय उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो इधर से सेट होता है पहले बार, ठीक है। जो सेल्स में है, जो मार्केटिंग में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसका डिपार्टमेंट यहाँ से सेट होता है, ठीक है। ডিপার্টমেন্টের পরে কি আছে, মেনুতে যাও একবার। डेजिग्नेशन ये मास्टर, डेजिग्नेशन होता है कौन सा एम्प्लॉय का कौन सा डेजिग्नेशन है, और इसके बाद एम्प्लॉय हाँ, एक डिपार्टमेंट के अंदर तो बहुत सारा डेजिग्नेशन हो सकता है ना, तो डिपार्टमेंट चूज करेगा, उसके बाद डेजिग्नेशन चूज करेगा। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। कंपनी के अंदर जितना भी एम्प्लॉय है उसका रजिस्ट्रेशन पेज है ये, ठीक है। ऐड न्यू करने से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, वहां पर पूरा एम्प्लॉय का सब कुछ देखे वो फिलअप करता है, और एम्प्लॉय सैलरी जो है वो एम्प्लॉय को एक ड्रॉप डाउन से एम्प्लॉय को चूज करेगा, उसका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर वो सेट करेगा, उसका बेसिक कितना है, डीए कितना है, ट्रैवल अलाउंस कितना है, वो सब कुछ सेट करेगा, ठीक है, समझा। सैलरी इन एंड आउट टाइम यहाँ से सब सेट इन आउट टाइम मतलब उसका अटेंडेंस गिरता है, अटेंडेंस देगा। ये उस टेक्निकली एम्प्लॉय का, एचआर डिपार्टमेंट का ही टोटली एक्सेसिबल चीज है। हाँ हाँ, सैलरी जनरेट मतलब 1 महीने खत्म होने के बाद वो सैलरी जनरेट करता है, ठीक है। समझो। वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को कितना पे करना है, कितना ओवर टाइम किया है, कितना उसका उसने लीव लिया है, एब्सेंट है कितना, हाँ কাজই করে না মন দিয়ে, ওই জন্য অ্যাবসেন্ট 25 दिन। अच्छा, सैलरी पेमेंट हो गया होता है, ठीक है, उसको तो पेमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से वो पेमेंट होता है सैलरी पेमेंट से, ठीक है। मंथ चूज करोगे, उसके बाद बाल्क में इधर पेमेंट होता है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली में यहाँ से पेमेंट हो सकता है? हाँ, ओके, एक्चुअली में पेमेंट हो सकता है, तुमको एंट्री कर, अब क्या होगा, तुम कैश में दे रहे हो तो तुमने कैश चूज किया, ठीक है, तो तुम हाथ में दे दोगे। अगर बैंक में किया तो तुम्हारा बैंक से वो ट्रांजेक्शन चला जाएगा। मान लो तुमने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया, ठीक है, तो उसका एंट्री तो इधर करना पड़ेगा ना कि मैंने बैंक से पेमेंट किया है, क्योंकि तुम्हारा बैंक से तो डिडक्ट हो रहा है। हाँ हाँ। और ये जो अटेंडेंस है, इधर अटेंडेंस गिरता है, 1 महीने का वो अटेंडेंस देता है, और जो ऊपर में इन आउट टाइम था, ठीक है, उधर सेट होता है कि एक एम्प्लॉय का कब वो इन करेगा, कब वो आउट करेगा, उसका दिन का इन आउट टाइम सेट होता है, कि जो ड्यूटी आवर्स होता है ना 10 to 7 या 10 to 8 वो सेट होता है, और यहाँ से अटेंडेंस गिरता है। समझा। একটা চুজ করো, অ্যাটেন্ডেন্স মান্থ একটা চুজ করো তো দেখি কিছু আছে কিনা। এই মাসেরই চুজ করছি, জুলাই চুজ করো, ডান। এটা আগস্ট মাস গো। हाँ, ये देखो एक ही एम्प्लॉय है, 3 दिन प्रेजेंट है, बाकी सब दिन एब्सेंट है। समझा। मैं होता तो इसको नौकरी पे ही निकाल देता। साला काम ही नहीं करेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मतलब जो एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करके देता है ना, वही अपॉइंटमेंट लेटर होता है बस। लो, ये टोटल सॉफ्टवेयर का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था। आप बताओ भाई कि कुछ कंफ्यूजन है? तुम पहले पर्सनल लोन, प्रोडक्ट लोन देख लो,
उसके बाद आएगा ग्रुप लोन आएगा। अब लोन का एक लिस्ट दे दिया है मैंने ग्रुप में, ठीक है। बस तुम लोगों को 2 लोन अभी दिखाया है, पर्सनल लोन और प्रोडक्ट लोन। ग्रुप लोन नहीं दिखाया, वो भी लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि पहले ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ग्रुप को लोन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा। ग्रुप लोन क्या होता है कि देखना बहुत सारा बैंक है बेसिकली, मेरा ख्याल से बंधन बैंक हाँ। जो एक ग्रुप को लोन देता है। देखा है कभी ग्रुप को लोन देते हुए? ग्रुप को लोन इन द सेंस क्या है, 4-5 आदमी को एक साथ लोन देगा, मतलब हाँ एक ग्रुप बना करके? हाँ, बैंक क्या उस करता हिसाब है, में दे मान रहा है। लो तुमको 10,000 की जरूरत है, ठीक है। बैंक तुमको 10,000 लोन नहीं देगा, ठीक है। तुम जैसा और पांचों को 10,000 या 20,000 या 30,000 का लोन चाहिए, ठीक है। ठीक है। तुम लोगों में से एक ग्रुप बना दिया, हो गया। उस ग्रुप में क्या होता है कि होगा कितना लोन अमाउंट हुआ, उस पांचों को मिला के समझो 1 लाख का लोन हुआ। ठीक है। बैंक 1 लाख के ऊपर लोन दे रहा है, हाँ। ठीक है। लोन अब बैंक किसको लोन दे रहा है, वो ग्रुप को लोन दे रहा है 1 लाख के। अब उसमें जिसको जिसको जितना अमाउंट जरूरत है वो ले लो, उसका इंडिविजुअल ईएमआई भी लगेगा। अगर फॉर एन एग्जाम्पल बैंक 1 लाख का ही लोन देने के लिए रेडी है, बट पांचों आदमी का मिला करके यूसेज 80,000 का ही है, तो 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा बचा उसका क्या होगा? वो नहीं होगा। बैंक अप्रूव ही 80,000 करेगा अगर नीड है 80,000 का, नहीं, या बैंक 1 लाख बैंक करेगा? चेक करेगा ना कि तुमको कितना लोन की जरूरत है एक ग्रुप को, अच्छा, और उसके एक हिसाब से ग्रुप बैंक के देगा। अंदर, हाँ, उसी हिसाब से तो वो ग्रुप बनाएगा। अच्छा। मान लो 10 आदमी आ गए, 10 आदमी को अगर तीनों ग्रुप बनाना पड़े तो बैंक बनाएगा। ठीक है। अगर एक ग्रुप में होगा तो एक ग्रुप बनाएगा। वो कंपनी का स्ट्रेटेजी है, वो एक ग्रुप में कितना रखना चाहता है मेंबर। कोई भी ठीक ग्रुप है। में 10 भी रह सकता है, कोई भी ग्रुप में 2 भी रह सकता है, कोई भी ग्रुप में 3 भी रह सकता है। ठीक है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और 2-3 चीज रिपोर्ट है। पहली बात, एक सीआईसी रिपोर्ट होता है, ठीक है। सीआईसी रिपोर्ट मतलब क्या, मान लो देखना कि बैंक बोलता है कि 3 महीने से लोन नहीं दिया तो तुम्हारा सिविल घट जा रहा है, ठीक है। तुमको एनपीए भी लग सकता है। एनपीए मतलब बैंकरप्ट हो जा सकते हो, अच्छा। ठीक है। उसका एक रिपोर्ट जो भी एनबीएफसी कंपनी होगा उसको सबमिट करना ही पड़ता है। जो भी कंपनी एनबीएफसी के अंडर में आता है उसको वो सीआईसी रिपोर्ट सबमिट करना ही पड़ता है हर महीने। समझो। ठीक है। वो सीआईसी रिपोर्ट का फैसिलिटी भी हम लोगों के पास है। माइग्रेशन का फैसिलिटी भी हम लोगों के पास है। माइग्रेशन मतलब जो क्लाइंट पुराना सॉफ्टवेयर छोड़ के ये नया सॉफ्टवेयर लेगा उसका पुराना सॉफ्टवेयर का डेटा हम लोग इधर पुट कर देंगे, ओके। ठीक है। वो माइग्रेशन होता है, वो भी अच्छा। इधर होता है। सिविल का भी तो चेक हो सकता है, तुम लोगों को दिखा दिया। आधार से भी डेटा फेच हो सकता है। हाँ। एसएमएस भी जा सकता है इधर से ऑटोमेटिक। मतलब जब भी लोन रिक्वेशन हुआ, जो मेंबर लोन ले रहा है उसके पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा लोन रिक्वेशन होने के साथ कि कि आपका आपका लोन इतना अप्रूव हो अमाउंट गया। का लोन रिक्वेशन हुआ है। अप्रूवल जब होगा हम्म। तब उसके पास मैसेज चला जाएगा आपका ये लोन आईडी इतना अमाउंट अप्रूव हो चुका है, ओके। ठीक है। मतलब। ऑटोमेटिक एसएमएस भी चला जाएगा, ये भी है। तो और भी रिपोर्ट होता है, ठीक है। वो क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट होगा, बकेट रिपोर्ट, एनपीए रिपोर्ट, बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो सब भी होता है। इसका बहुत सारा एक बहुत ह्यूज लेवल का एक पार्ट है, ठीक है। ये तो बस 2 लोन तुम लोगों को समझाया। ये नॉर्मल माइक्रो फाइनेंस के लिए है। एनबीएफसी बाद में सिखाऊंगा। एनबीएफसी का और एक लेवल आता है, ठीक है। जैसा कि मान लो तुम लोगों ने बहुत सारा अभी दिखा है ना प्ले स्टोर पे, बहुत सारा ऐप जो फाइनेंस पे लोन दे रहा है, हाँ। वो एक ही बार में तो नहीं दे रहा है तुमको, तुमको अप्लाई करना पड़ रहा है। उसके बाद बहुत कुछ होता है बैक एंड में। उसके बाद अगर तुम उस लोन के लायक हो तब जाके वो तुमको देगा वो लोन,
ठीक है, उसके पीछे बहुत सारा फिल्ट्रेशन का काम करता है एक कंपनी में। समझा। वो उसके बाद में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। पहले ये 2 लोन अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। पॉइंट अब यही है भैया कि कल सुबह उठने के बाद कितना क्या याद रहता है। हाँ, जो भी कल भूल की जाओगे अवेलेबल स्क्रीनशॉट लेके मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तूफान आप कल अवेलेबल हो ना थोड़ी देर व्हाट्सएप में रिप्लाई देने के लिए? হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাভেলেবেল আছি। ঠিক আছে, কালকে তুমি অ্যাভেলেবল থাকলে তোমরা কালকে তোমার এখানে আপাতত একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা, মেইনলি তোমার যেটা লাগে 5টা লোন, ঠিক আছে। 5টাও না, 4টে লোন বেসিক্যালি খুব বেশি যেটা লাগে এখন মার্কেটে চলছে, हम्म পার্সোনাল লোন, গ্রুপ লোন, গোল্ড লোন, ঠিক আছে, আর প্রোডাক্ট লোন। এই 4টে লোন প্রচন্ড পরিমাণে চলছে, ঠিক আছে। तो ये होम लोन और कार लोन ये सब, बाइक वाइक का ईएमआई ये सब किसके अंडर में आता है? प्रोडक्ट के अंदर ही? प्रोडक्ट के अंदर ही, अब नहीं, उसका अलग से प्रॉपर्टी लोन होता है, ठीक है। जैसे कि इधर दिखा है ना, ठीक है। जो मार्केट में अभी चल रहा है वो अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, ये चारों लोन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझा। पर्सनल लोन, ग्रुप लोन, प्रोडक्ट लोन और गोल्ड लोन, ठीक है। समझा। पर्सनल लोन, प्रोडक्ट लोन मैंने दिखा दिया आज। हम्म। नेक्स्ट मीटिंग पे ग्रुप लोन, गोल्ड लोन, ये 2 दिखाऊंगा, तब जाके एक लोन का डेमो तुम लोग दे सकते हो। अगर कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन रहे क्लाइंट के एंड से, हम्म ठीक है, एक ही बात बोलना, सर डेवलपर के साथ बात कर रहा हूँ, अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ठीक। बहुत सारा ऐसा रिक्वायरमेंट भी आता है जो हम लोग सॉल्व करके देता है, जैसा हूँ आज तक दिया हूँ मैं, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से उसको कस्टमाइजेशन, मतलब उसको जैसा कस्टमाइजेशन वो रिक्वायरमेंट है करेगा वैसा। ही करेगा कस्टमाइजेशन। ठीक। बहुत छोटा कंपनी है जिसका टर्नओवर बहुत कम है, हाँ ठीक है, मान लो महीने पे 1 या 2 लोन देता है, वो भी 50,000 या 40,000 का, हाँ। वो अलग बात है, वो कस्टमाइजेशन नहीं करवाएगा उतना, क्योंकि चार्जेस लगेगा, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा कंपनी आए ना, वो कस्टमाइजेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि हर एक कंपनी का स्ट्रेटेजी अलग सा होता है उसका। वो जो कम करवाएगा, हाँ। वो ये जो ट्रांजैक्शन पार्ट है वहाँ पे काम जितना करवाएगा उसका बहुत गुना ज़्यादा काम करवाएगा रिपोर्ट में, क्योंकि उनको रिपोर्ट में क्लैरिटी चाहिए। वो रिपोर्ट दिखेगा, उसको क्लैरिटी मिलेगा, तभी जाके ना वो फर्दर लोन के लिए सोचेगा। हम्म। শুভঙ্কর দা, আর কিছু বলার আছে? अच्छा, ऑर्को और साजिद, तुम लोग दोनों का अभी कुछ कंफ्यूजन है? एट द मोमेंट तो आपातत नहीं। एट द मोमेंट तो नहीं भाई। मंडे से चालू कर पाओगे एक दो डायरेक्ट अगर क्लाइंट दूँ तो? आप ना भैया देखिए, अगर मेरे को आपको एक डेमो के लिए, मतलब जैसे आप लोग के पास अभी एक एक्सेस है, तो एक डमी अकाउंट या कुछ एक ऐसा आप मेरे को दे सकते हो, ताकि मैं अब हाँ हाँ, घाट তুফান पे একটা पोस्ट। ये ডামি একটা দিয়ে দাও না, এটা তো অলরেডি একজন আমি use দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এগুলো সব কটা লাইভ ডেটা। हाँ, आप ऐसा दीजिएगा जिसमें मतलब अगर बाय मिस्टेक मेरे से अगर कोई चेंजेस हो जाए, या मैं घाटते घाटते, क्योंकि देखिए हम लोग भी अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ऐप वगैरह यूज करते हैं तो कैसे सीखते हैं, घाटेंगे उसको जब तक नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो वहाँ पे वो चेक करते करते में अगर मेरे को कुछ कंफ्यूजन नजर आया कि हाँ हाँ ये क्या है, हाँ तो हाँ फिर मैं आपसे हाँ, पूछ पाऊंगा। ठीक है, वो एक बार मैं शुभंकर दा से बात करके, ठीक है। क्योंकि कल का दिन देखिए, कल संडे हो गया, अब आज आज टेक्निकली आज ही संडे हो गया, आज का दिन अगर मेरे को दोपहर को मिलेगा, तो अगर मेरे को रात तक कोई क्वेरी रहा तो मैं आप लोग को दोबारा कांटेक्ट करके या और को बोलूंगा, या आप लोग को बोलूंगा क्या मेरे को ठीक ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग के पास एक टाइम रहेगा कि आप लोग बता पाओगे। तब ठीक फिर है अगर ठीक आप बोलोगे मंडे से लेने के लिए फॉर मतलब किसी को ये करने के लिए, तो मैं कर लूंगा। ठीक है। सेम सेम। वो शुभंकर दा से एक बार मैं बात करके, ठीक है, ठीक। एक डमी बना के मैं ट्राई कर रहा हूँ, कल तक तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ठीक। कल ट्राई इन कर, द सेंस आज संडे को या मंडे को? अकॉर्डिंग टू बंगाली आज अभी तक तो संडे नहीं हुआ। हाँ, तुम टाइम पकड़ के चलो तो वो संडे हो गया भाई।
एग्जैक्टली मैं इसीलिए पूछा। ऑफिशियली और टेक्निकली वो संडे हो चुका है, 12 बज गए, मतलब हो गया। जब तक नहीं सोते हैं तब तक नेक्स्ट दिन नहीं आता है। हाँ, तो अब आप बताइए, आप मेरे को सुबह उठने के बाद दीजिएगा या अगला दिन मंडे को তুফান, दीजिएगा? তুমি একটা কাজ করো না, তুমি আমাদের কোডগুলো ওই মাই এসকিউএল বা কোনো একটা নর্মাল ডেটাবেস গুলো হয় না অনলাইনে, যেগুলো ফ্রি অ্যাকাউন্টে বা মঙ্গো বুঝতে যেগুলো, পেরেছি। ওটা হ্যাঁ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, ডিসকাস করো। আমি ওদেরকে তাহলে কালকে দিলে ওরা প্র্যাকটিস করুক, নাহলে ভুলে যাবে। और अच्छा, तुम हम्म। दोनों अगर सुन लो, जो अगर मैं कोई लाइव अकाउंट अभी के लिए देता हूँ कल के लिए, ठीक है, कुछ चीजें डिलीट मत करना, जो लिस्ट आएगा वहां से कुछ डिलीट मत करना, ठीक है। ठीक और अगर एंट्री कहीं पे कर भी देते हो ग्रुप में लिख देना। ठीक ठीक है जो ठीक है। कंपनी का वाइटल ओरिजिनल डेटा है, तो वो अगर डिलीट हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, वही वही वही, ठीक है। ठीक है ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा संभाल के यूज करना, गलती से भी कुछ चीज डेटाबेस से डिलीट मत करना, ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ तो एक्सेस दूंगा, कल देख लो। मंडे एक दो करके क्लाइंट में दूंगा, एक्चुअली कल से ही देना चाहता था, मगर तुम लोग एक दिन टाइम देके देख लो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जैसे वो उसने समझाया, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्लाइंट खुद जानता है इस सारे चीजों के बारे में, ठीक है। तो इतना वो उसको बस एक ओवरव्यू चाहिए होगा, या फिर स्पेसिफिक कोई बोलेगा ये चीज है, तो बीच में से तुम खोल के वो दिखा देना, ठीक है। और कुछ नहीं भी है तो बोलना कि है, हम लोग मॉडिफाई करके बना सकते हैं। वही तो, जैसे वो बोले कि डेवलपर से बात हो रहा है, पे अगर पॉसिबल होगा तो कर देंगे। पॉसिबल नहीं, गारंटी दे देना, गारंटी मगर दे देना कि वो हो जाएगा, ठीक ओ है। अच्छा, ठीक 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 गारंटी दे देना हो जाएगा, कैसे करूंगा वो मेरा ऊपर छोड़ दो, ठीक ठीक मैं है। ठीक करके ठीक दूंगा, ठीक है। ठीक है। और हम लोग सॉफ्टवेयर 10 से 15 दिन के अंदर डिलीवर कर देंगे, ठीक। ठीक। ठीक है। और क्योंकि हम लोग उसको जल्दी नहीं बोलेंगे ना, तो वो हम लोग को काम नहीं देगा। हाँ वो तो सही बात है। नहीं, और एक बात बोलना, अगर क्लाइंट को बहुत जल्दी है, हाँ ठीक है, तो क्लाइंट को बोलना सर एज सुन एज पॉसिबल आपको बेसिक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम लोग मॉडिफिकेशन करके आपको दिखा देंगे, ओके। ठीक है। क्योंकि अगर क्लाइंट के अंदर कुछ कैलकुलेशन का चेंजेस आया, वो तो बेसिक सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, उसको पर्सनली उसके लिए मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कस्टम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। और भाई येटा पेमेंट वगैरह। अच्छा हाँ, क्लाइंट का पेमेंट एडवांस देगा, उसके बाद ही हम लोग काम शुरू करेंगे, ठीक है। আর আমাদের পেমেন্ট। হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট দিলে তুমি সাথে সাথে ওই দিনই পেয়ে যাবে, ইভেন আমি ও পাওয়ার আগে তুমি পেয়ে যাবে ফুল পেমেন্ট, ও ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে। अच्छा, बट हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक ही सॉफ्टवेयर है या और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर है? अभी के लिए तुम लोगों को यही दूंगा डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। ठीक है। 90% क्लाइंट यही वाला है हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर का। आता है कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, तो अभी के लिए वो तो रेडी नहीं रहता है, वो कस्टमाइज तो एक तो आ जाता है। तो चार्जेस वगैरह का कोई ग्राफ रहेगा या शीट रहेगा तो आप हम लोग को दे दोगे वो तो? मैं कल आपको तुम दोनों को कॉल पे लेकर दूंगा, ठीक है। ओके वो ओके। सारा चार्जेस, अब कुछ प्रॉब्लम होगा आप कॉल के अंदर में मीटिंग में मुझे बुला लेना, अभी के लिए कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं घर पे हूँ अभी, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा तो तुम लोगों को मैं पहले की एक कॉलर है, वो कॉल करके मीटिंग फिक्स करके तुमको देगा, ओके। दोनों को देगा, तुम दोनों में से अब जो अवेलेबल हो। और तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया फिर से। साकेत साकेत। साकेत है मेरा नाम, साकेत जायसवाल। साकेत, तुमसे मैं कल थोड़ा एक बार बात कर लूंगा, तुमको और औरकों को लेके, ठीक है, सुबह। ठीक है। ठीक है ठीक है। और एक है तन्मय सामंत बोल के। हाँ हाँ, वो भी है, वो इमरजेंसी में अगर कोई हम लोग में से कोई नहीं रहता है तब वो सपोर्ट दे देगा। ओके, गॉट इट। ओके ओके वो अभी दूसरा काम कर रहा है, इसीलिए वो म्यूट है, ठीक है। ठीक है। देखो, क्लाइंट यूजुअली शाम के टाइम पे आता है, प्रॉब्लम ये है कि तूफान ऑफिस का काम में रहता है, वो अवेलेबल नहीं रहता है, मुझे भी अवेलेबल नहीं पाओगे, यही ठीक है। मैं पूछने वाला था कि बेसिकली वर्किंग आवर्स मतलब क्लाइंट का नहीं, इंटरव्यू क्लाइंट को पूरा था। दिखाने के लिए तुम्हारे साथ में हम मैक्सिमम में जो ज्वाइन कर देखो, सकते हो, मैं बोलूंगा। क्लाइंट को जब दिखाने बैठोगे, ठीक है, अगर कोई भी जगह पे अटक जाओगे, ठीक है। ठीक है, हैंडल कर लेना, ठीक है। किस तरीके से थोड़ी देर के लिए उसको अगर बाईपास कर सकते हो तो बाईपास कर दो, या फिर अगर उसको तुम
थोड़ी देर के लिए वेट करवा सकते हो तो वेट करवाओ, ठीक है। ठीक है। वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डालो, ठीक हाँ है। मेरे को एक कॉल कर देना, अगर मैं अवेलेबल रहूंगा, हाँ ठीक है, कॉल रिसीव करके तुमको इंस्टेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ठीक है। और अगर इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ तो व्हाट्सएप में मैं लिख के दे दूंगा रिप्लाई। अगर मैं कुछ सीरियस सिचुएशन पे होऊंगा कोई मीटिंग वगैरह में, तो मैं बोल दूंगा कि अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, हैंडल कर लो। तो क्लाइंट को तब तुम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। उसको अभी मैंने क्या बातों में थोड़ा फंसा के रखना ताकि क्लाइंट हाथ से ना निकले। हाँ, उसको बाद में बात करके हम लोग सॉफ्टवेयर चाहे दे कोई भी बोल दो, हम लोगों का सपोर्ट भी यही बोलता है कि अगर कुछ एरर आ जाता है, सर ये सर्वर इशू है, अभी सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। वो ठीक है। एरर हम लोग सॉल्व इंस्टेंट करके दे देते हैं। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ टेक्निक सीख लो जिस तरीके से तुम उसको कहेंगे होल्ड करवा सकते हो, ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। और को सजीत मैं कल सुबह फोन करूंगा तुम लोगों को लिए पेमेंट को लेके, और दूसरा क्लाइंट का कितना रेट होता है वो बोलने के लिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट बहुत सा टाइम होता है ना, बहुत कम में मांगता है, उसके लिए क्या बोलना है वो मैं कल तुम दोनों को सुबह कॉल पे लेके बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर भी कितने बजे कीजिएगा भैया, एक बार बता दीजिए थोड़ा। हाँ, फिर भी कितना बजे तक कॉल कीजिएगा आप? 11 बजे पकड़ लो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, तुम लोग को भी सुबह उठने में टाइम लगेगा। हाँ, मेरा उठते उठते थोड़ा लेट हो सकता है, बट ठीक है, हो जाएगा 11 बजे आप चलो फोन मैं देरी से ही कॉल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे ठीक। कॉल कर लूंगा, 2 बजे कर लूंगा। दोपहर ही कॉल कल करो भैया। संडे है, क्योंकि कल मैं इसीलिए कॉल करूंगा, कल कोई फिर से कंफ्यूजन आता है, मैं सुबह के सुबह ही तुम लोगों को डिटेल्स दूंगा, कुछ मैं प्रैक्टिस देख के एक जो ऑलरेडी क्लाइंट का है, जैसे मैं अभी डेमो देखा रहा हूँ, तुम जस्ट ओवरव्यू करने के लिए करो, उसके अंदर कुछ एडिट वेडिट वगैरह मत करने जाना। तब ठीक। तक वो तूफान तुमको एक डेमो के लिए बना के दे देगा, उसमें तुम पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेना। ठीक, अभी तो कोई कुछ नहीं करेगा, जो होगा कल सुबह ही होगा। हाँ विदाउट के मैं ऐसा एक दे दूंगा लॉगिन, खोल हाँ के हाँ हाँ। बस देखना और कुछ मत करना उसमें, ठीक है। ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या होगा, आज रात जो दिखा है 1-1.5 घंटे से याद आ जाएगा, ताकि गॉट इट, तुमको गॉट इट। जितना देखो क्लाइंट को तुमको दिखाने के लिए खुद जानना बहुत जरूरी है, हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो खुद जितना अच्छा जानेगा, क्लाइंट को डेमो दे पाओगे, क्लाइंट उठ जाएगा, और उठ जाएगा मतलब तुम्हारा भी काम मेरा भी काम, सही बात है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ ठीक। ठीक है, चलो कल तुम दोनों से बात होगी। और तूफान हम्म। তোমাকে অলরেডি রাত অবধি একটু বিরক্ত করলাম। ঠিক আছে। আচ্ছা, কালকে তুমি একটু সকালে আমার ফোনটা ধরো, যে ডেমো ওদের যদি কিছু পসিবল হয়। হুম, ঠিক আমাকে আছে। ওই তো বললাম তুমি স্ক্রিনশট তুলে গ্রুপে দিয়ে দিও না, কেননা अच्छा আমার কাছে तो হয়তো কম্পিউটার থাকবে না, ঠিক আছে। না তুমি না, তোমার ওটার কিছু বলছি না, আমি বলছি ওদেরকে একটা ডেমো প্রোভাইড করা পসিবল কালকে। আমি দেখে নিচ্ছি, কালকে না আমি হলেও কিন্তু ডেফিনেটলি, না কালকে না হলেও আমার একটুখানি ভেবে নিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। ওটা আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করে নিচ্ছি। ঠিক আছে। বাট কাল না হলেও ডেফিনেটলি মানডে অবধি আমি প্রোভাইड कर दूँ, मंडे ठीक है। मॉर्निंग है, ठीक है। तुम दोनों कल के लिए यही वाला से एक बार देख लो, थोड़ा याद आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी का जो दो बाकी रह गया, एक गोल्ड लोन का और एक ग्रुप लोन का, उसका फिर कब होगा? कल ही होगा या बाद में? कल तूफान ना तुम फ्री हो थोड़ी देर के लिए? কালকে চাপ আছে, কালকে আমি সকালে বেরিয়ে যাবো কালকে। ठीक है, मंडे देख लेते हैं, कल चाप है। यही तक देख लो, क्योंकि ठीक मेरे पास ठीक अगर ऑलरेडी 15-20 तो क्लाइंट डेमो इसको के लिए बैठा इसको है। पहले हजम कर लो, ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है। एक साथ में दूंगा तो तुम लोग उल्टी कर दोगे। नहीं, इसीलिए बोला, मैं पूछ लिया कि कल है इसको परसों है तो। पहले 2-3 बार देख लो, ठीक ठीक है। एंट्री ठीक। चाहे कर पाओ या ना कर पाओ, ঠিক আছে। শুভঙ্কর দা, हम्म, তুমি একটা কাজ করো, তুমি ওদেরকে না এইটারই অ্যাক্সেসটা দাও, ठीक है। ठीक कुछ है। भी डेटा को डिलीट मत करना, अपडेट मत चलाना, ठीक है। ठीक ठीक। अगर कोई स्कीम बना सकते हो तो टेस्ट बोल के बना डालो, ठीक है। नया स्कीम बना लो टेस्ट बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बस है। मेरे को बोल देना कि हम तो हम लोग डेटाबेस से डिलीट। इधर हम लोग एंट्री किया है, ठीक है। ठीक ठीक है। देख लो, क्योंकि 2-3 बार देखने के बाद तुम लोग को वो एक आइडिया आ जाएगा, तब
दूसरा 2 लोन दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा कैलकुलेशन भी है गोल्ड लोन के ऊपर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। फिर भी ग्रुप लोन तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, हम्म। क्योंकि ग्रुप लोन का लोन बनने के बाद ये नॉर्मल प्रोसेस पे ही जाता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन गोल्ड लोन का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, उधर ऑर्नामेंट का लोचा है ना उधर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उधर बहुत सारा चीज है, उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ता है पहले। जो अच्छा। ऑर्नामेंट तुम लोग सबमिट करके पैसा ले रहे हो, हम्म। डिपॉजिट करके, उसका वैल्यूएशन निकलना पड़ता है, करंट आज के डेट पे रियल टाइम पे जो वैल्यूएशन चल रहा है हम्म। उसके ऊपर बेस करके वैल्यूएशन निकलना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए समझा। बोल रहा हूँ उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं पूरा ही अलग है, ठीक है। ठीक। ठीक ठीक। ठीक, अभी के लिए तुम लोग देखो, अगर तुम लोग कल कॉन्फिडेंट हो तो मैं मंडे को 1-2 करके तुम दोनों को दूंगा, एक क्लाइंट, ठीक है, डेमो ठीक है दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत क्लाइंट का प्रेशर है। क्लाइंट को जब डेमो दोगे, 2 टेक्निकल टीम अभी के लिए तुम दोनों मत बोलना, क्योंकि तुम लोग अभी भी पूरा चीज अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगे जब हाँ। हम देखेंगे, ठीक है। तो तुम लोग बताना, तुम लोग डेमो टीम से हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर का डेमो देते हो, क्योंकि वो लोग अगर पूछेगा ना, तुम ये बात के टाल पाओगे कि मैं टेक्निकल टीम का गाई नहीं हूँ, मैं पूछ के बता सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी अगर तुम बोल दो कि मैं टेक्निकल गाई हूँ, तब जाकर पूछेगा, तुम बोल नहीं पाओगे, वो सॉफ्टवेयर हमसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा इसका टेक्निकल टीम को ही नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या लगता है। বুঝতে तो ये चीज পেরেছি। मत बताना, तुम लोग टेक्निकल टीम से हो, डेमो टीम से हो, ठीक है। ठीक। अभी के लिए ঠিক আছে ঠিক जब আছে। कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो ऐसे 1 हफ्ते बाद दिखाओगे ना, तुम लोग ऑटोमेटिक पूरा चीज याद आ जाएगा। तो हाँ नहीं, तुम लोग अगर एक्सपर्ट हो भी गए हो, ठीक है, टेक्निकल टीम मत बताना। हाँ, ये सबसे टेक्निकल, अच्छा लूप होल है हाँ हाँ एक्चुअली में। हाँ, टेक्निकल टीम अगर बताओगे ना, वो तुमको टेक्निकली कुछ क्वेश्चन करेगा जिसका हाँ आंसर तुम कभी दे भी नहीं सकते हो, एग्जैक्टली वो ठीक है। फिर मेरे को ही तुम पॉइंट बस आउट करके बोलना कि पूछेगा तो मैं क्या डेमो जवाब टीम से दूंगा। हूँ सर, मैं डेमो दिखाने के लिए आया हूँ, সুমন কথা हाँ কি বলতো, টেকনিক্যালি যদি কোনো কোশ্চেন করে না কোড রিলেটেড, বেকার ফেসে যাবে, কিন্তু বলতে পারবে না তখন। কেননা तुम लोग मत টেকনিক্যাল বলতে, बताना। টেকনিক্যাল বলতে এর ব্যাক এন্ডের পার্ট বোঝায়, এ কিভাবে हम्म। বানানো হয়েছে, কি বানানো হয়েছে, ভিতরে কি অ্যাকুরেট ক্যালকুলেশন আছে, সব বলতে হবে। तुम लोग को कौन सा लैंग्वेज पे, ये कोडिंग लैंग्वेज पे बनाया है, ये तो तुम लोगों के पास डिटेल्स है नहीं, तुम लोग हाँ फंस वही, जाओगे। अगर वो पूछ लिया एल्गोरिदम पूछ लिया मेरे से या डेटाबेस पूछा नहीं, तो मैं क्या एल्गोरिथम जवाब तो दूंगा। हम लोग बताएंगे नहीं, वही तो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। हाँ वही। वो तो हम लोग बेच बोल भी नहीं सकते, वो पूछेगा भी। मगर एग्जैक्टली। कौन सा लैंग्वेज पे हो रहा है, कुछ कुछ होना है ना, कुछ लोगों को टेक्निकल टर्म्स पता होता है, तो बोल देना। जावा सी अगर प्लस प्लस अगर पाइथन। अगर कुछ बोले, ठीक है, तो बोलना सर हम लोग एमबीसी पे बनाते हैं, ठीक है, ASP.NET MVC, बस इतना बता देना और कुछ मत बताओ। अच्छा, ये और दो अगर, टेक्निकल टर्म्स उन लोगों को व्हाट्सएप में लिख दो, क्योंकि उन लोगों हाँ को नहीं हाँ होगा। फिर हाँ, याद और रहेगा। डेटाबेस कौन सा यूज करते हो, SQL सर्वर यूज करते हो, बस। MySQL। और कुछ मत बताओ। इतना बताने से उसको कुछ मालूम होगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, वो बस क्वेरी के लिए पूछता है, क्योंकि कोई कोई लोग PHP नोड.js पे भी बनाते हैं, ठीक है। मगर मेनली ये सब सॉफ्टवेयर .NET पे ही बनता है। ये तुम इस टाटा का मेडिकल में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वो लोग .NET, ठीक है। ঠিক আছে .NET ভাই। ही तो चोल मार्केट है। हाँ, तो ये .NEट का वो ग्रुप में दे दिया, ये चीज कुछ कुछ याद कर लो, ठीक है। হুম ठीक कल है। हम लोग, मैं तुम दोनों को कॉल करूंगा, क्लाइंट का क्या बजट होता है, तुम लोगों का पेमेंट, तुम लोगों को पेमेंट कैसे करूंगा, सब डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। ঠিক ठीक है আছে ठीक ঠিক है। আছে। और तब तक तुम लोगों को मैं एक्सेस दे के रखता हूँ। হুম तो वो आज रात देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 2:30-3 बज गए, सो जाओ अब तुम लोग। जो होगा कल होगा भैया। हाँ, हाँ हाँ तो कल होगा, कल देख लेना, कल याद कर लेना, कुछ भी अगर अगर क्वायरी है तो ग्रुप में ठीक। स्क्रीनशॉट देकर डाल दो। হুম कल तूफान थोड़ा बिजी रहेगा, वो उतना तुम लोगों को कॉल अटेंड नहीं कर पाएगा, मगर ग्रुप में लिख देगा, ठीक। ঠিক আছে ঠিক আছে। ठीक है। ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं तुमको रिप्लाई दे दूंगा। अगर इंस्टेंट में होऊंगा व्हाट्सएप ऑन करके तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद मैं दे ঠিক दूंगा। আছে ভাই, চাপ লেস। तन्मय, आप कॉल पे हो अभी? तन्मय, तन्मय आप म्यूट है, तन्मय आप कॉल पे हो अभी? अच्छा, आपका कोई क्वेरी है कुछ? ठीक है, अच्छा, तो कल तुम लोगों को कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ अभी ठीक के लिए ठीक। रखते हैं। गुड नाइट। चलो, गुड नाइट, गुड सुमन नाइट गुड কথা, नाइस नाइट। टू हाँ मीट गुड यू। नाइट। हाँ, तूफान बोलो।
তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে মিটিংটা হ্যাঁ। কন্টিনিউ করো, বাকিরা লিভ করতে পারে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, অল্প ঠিক আছে। সাজিদ তোমরা বেরো, গুড ঠিক নাইট, আছে, কালকে আমি তোমাদের সাথে কানেক্ট করছি। ঠিক আছে, গুড নাইট। गुड नाइट दादा, गुड नाइट। कल सुबह बात होगा। তন্ময় তোকে আমি ফোন করছি, তুইও বেরোতে পারিস।